So we have with us, by the time Vinayji will be introducing the next speaker, CA Nishant Tulsian. He'll be speaking on US-India income tax Taxation. as well as NRI taxation. Slide. As well as NRI taxation. Now, there are so there are many chartered accountants who are doing practice in outsourcing. They are either doing bookkeeping for their US clients or US CPAs, or they are filing returns for NRIs, for even the W2, or if they are working there, or S Corp if they have a small organization there in US. So those filings are done in India on behalf of the US citizens who are based out of India, who are either green card holders or NRIs. Now there is a lot of opportunity in this practice area. It is a niche area. CA Nishant Tulsian is going to speak on this, the opportunities available, and what are the nitty-gritty of such a practice. And over to Vinayji for introducing our guest. So I'm pleased to introduce Mr. Nishant Tulsian. He is a partner in Tulsian Company LLP. His qualification is FCA, ACS, LLP, registered valuer of IBDI, registered with IBDI also, enrolled agent with IRS, USA, MSc in Applied Finance, Singapore, GIIT, ICI, VISA, ICI, and BCom Honors of course. His area of expertise is international taxation, USA taxation, consultancy, litigation and compliance, GST consultancy, litigation and compliance, valuation. He is a fellow chartered accountant and heads the USA taxation and GST department as well as its valuation division at Tulsian Company LLP. Nishant is a category authorized enrolled agent EA empowered by the US Department of Treasury to represent clients on complex matters before the Internal Revenue Service, including the audit, tax refunds, and appeals. Additionally, he is a registered valuer with Security and Financial Research under the IBDI. He is instrumental in handling valuation assignments that meet rigorous exclusivity requirements. Nishant holds a master's in Applied Finance from Singapore Management University. He is also company secretary. He is a LLB postgraduate with first class honors, and then already a second rank holder in diploma in information system audit. His qualification extend to diploma in international taxation from ICI also, coupled with the first class degree in diploma honors from St. Louis College, Kolkata. With over 15 years of experience, he is expertise explains USA tax restructuring, international taxation, business valuation, GST advisory and litigation, and complex valuation settings. His profile is a very good one. And he's very, very generous and very humble introduction. It speaks of his knowledge and his work profile, which extends not only to India but also to the US. So with all the things, I welcome Mr. Nishant to start his presentation. In the meanwhile, I invite Mr. Azad Agarwal to extend Nando to Mr. Nishant. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Good evening, everyone. I thank each and every one of you to be present here today, to take out time on a Saturday to hear us. Thank you, Views Exchange, CP Study Circle of VIRC. Thank you, Rishi Katorji and Naveenji, Vinayji for having me over here. Okay, so we are going to discuss about a very niche area wherein we all can enter this and practice here in India. As Rishi ji had introduced this particular niche area as his US tax filings. मतलब क्या हुआ इसका? US tax filing मतलब क्या हुआ? जो आदमी लोग US में ग्रीन कार्ड होल्डर है, जो US में सिटीजन है, या तो US में 183 दिन, एक कैलकुलेशन है, we will talk about that, उससे ज्यादा रहते हैं तो they become US resident.
तो यूएस में टैक्स फाइलिंग करना पड़ता है उनको. देयर आर सर्टेन टैक्स फॉर्म्स देयर. अब देयर आर मेनी एनआरआईज, नॉन रेसिडेंट इंडियन. अब वहां पर अगर रह रहे हैं तो ऑब्वियसली इंडिया में दे मे बी, मेनी मे बी नॉन रेसिडेंट, या तो दे मे बी डुअल रेसिडेंट, इंडिया के भी वहां के भी, राइट. बट मोस्टली यूएस के अगर वहां पर रेसिडेंट ग्रीन कार्ड है, वहां पर रह रही है, सो दे आर एनआरआईज, नॉन रेसिडेंट इंडिया. अपने उसका डेफिनेशन भी देखेंगे इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 6. What I am trying to say is that all of us, we are chartered accountants here, right, professionals. So we can enter this area and we can do the tax filing also. It's quite easy. Software है, law है, सीख करके अपने फाइल कर सकते हैं अपने. तो what I am trying to say कि ये एरिया जो है ये बढ़ते ही जा रहा है यहाँ पर, इसका पॉपुलैरिटी एक्सेट्रा. एंड ऑल्सो आई होल्ड अ क्रेडेंशियल विच इज कॉल्ड एनरोल्ड एजेंट. सो एनरोल्ड एजेंट क्या है कि इवन इफ यू आर नॉट एन एनरोल्ड एजेंट, आप एक तो P10 प्रोफेशनल टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर अगर आप अप्लाई करते हो, आपको सिर्फ पासपोर्ट चाहिए, आप अप्लाई करते हो, विद इन 1 month 2 months आपके पास में P10 आ जाएगा. सो यू बिकम अ टैक्स प्रिपेयर. यू डोंट नीड एनी अदर क्रेडेंशियल. यू डोंट नीड टू बी एन EA. यू डोंट नीड टू बी अ CA. एंड यू कैन स्टार्ट फाइलिंग. क्या आप किनसे जुड़ करके, जिनके पास में है NRI क्लाइंट्स, यू कैन स्टार्ट फाइलिंग. तो लेट अस सी अपने इंटीग्रेशन NRI इंडिया टैक्सेशन, यूएस का भी मैं ऑब्वियसली आई विल डिस्कस कहाँ अपॉर्चुनिटीज है. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मतलब स्लाइड में थोड़ा सा और डिटेल रखा हूं. स्लाइड्स में मैं क्या रखा हूं, आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड दो स्पेसिफिक सिचुएशंस जो कॉमन है. गिफ्ट करते हैं NRI बाहर में, कैपिटल गेन्स यहाँ पर मकान बेचते हैं, तो व्हाट वुड बी दी टैक्सेशन इम्प्लीकेशन अंडर बोथ द लॉज. ये सब चीज से ही तो आप कंसल्टेंसी करके पैसा कमा सकते हो सर. जो अब मूवमेंट है, रेमिटेंसेस है, एक्सेट्रा, देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स. तो लेट अस गो अहेड. कोई भी क्वेश्चन होगा पूछिएगा वो चीज, ठीक है. देखिए, फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड हु इज अ, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, हु इज अ टैक्स रेसिडेंट इन इंडिया. ये तो अपने को मोटा मोटी ऊपर से पता है, अपने वी ट्राई टू अंदर घुसेंगे. वी ट्राई टू, पहला तो एवरीवन नोज 183 या 182 या 182 डेज से ज्यादा इफ यू स्टे इन द प्रीवियस ईयर, मतलब कि 24 25 मानिए 25 26, तो यू बिकम एन इंडियन टैक्स रेसिडेंट. मतलब क्या हुआ, ग्लोबल टैक्सेशन, ग्लोबल इनकम पे आपका टैक्स लगेगा, राइट. ये वाली मानिए ये आपका नहीं होता, तभी भी और है. व्हाट इज द सेकंड, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज C. ये क्या बोलता है कि इफ इन द लास्ट 4 प्रीसीडिंग ईयर्स, अगर 365 डेज अगर आप इंडिया में रहते हो या तो उससे ज्यादा, और करंट ईयर में 60 डेज क्या उससे ज्यादा अगर आप रहते हो, तो आप यहां पर इंडिया के टैक्स रेसिडेंट हो. ये 60 डे रूल बहुत कम जन लोग अप्लाई करते हैं. तो पहला वाला से देखते हैं 183 डेज, अच्छा 167 डेज है, नहीं होगा वो. नहीं, आप पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको कि लास्ट 4 इयर्स में 365 डेज के उससे ज्यादा रहे हैं कि नहीं रहे हैं, और करंट ईयर में 60 दिन से ज्यादा रहे कि नहीं रहे. ऊपर वाला 183 डे रूल क्लॉज C है, 60 डे रूल. अब ऊपर वाला में तो कोई अमेंडमेंट नहीं आया है, नीचे वाला क्लॉज C है, इसमें काफी अमेंडमेंट्स आए जो समझते हैं अपने. अमेंडमेंट क्या है, पहला वाला देखिए, कोई भी आदमी इंडिया से अगर बाहर जाता है या तो बाहर से इंडिया में आता है, तो उसके लिए कुछ राहत दिया गया है. व्हाट डज दैट मीन, ये 60 डे जो आपका है, 60 डे जो क्या लिखा हुआ है, लास्ट 4 इयर्स में 65 डेज है. बट इफ यू इज इन इंडिया फॉर अ पीरियड अमाउंटिंग इन ऑल से 60 डेज और मोर इन द ईयर, तो आप टैक्स रेसिडेंट होंगे. टैक्स रेसिडेंट होंगे तो खराब है, ग्लोबल इनकम में टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, राइट. इसके लिए कुछ राहत दिया गया है. बोले कि सर 60 डेज तो चलिए आते जाते निकल जाता है, आप इंडिया से बाहर जा रहे हो एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो मैं आपको 183 डेज का मैं बेनिफिट दे देता हूं कि इफ यू आर गोइंग लीविंग इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट, तो ये 365 डेज बराबर है, 183 डेज का ऊपर का कोई चेंज नहीं हुआ. ये 60 डेज चेंज होकर के 183 डेज हो जाते हैं. इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए दुबई जा रहे हो, एम्प्लॉयमेंट के लिए आप अमेरिका जा रहे हो, तो जो साल आप जा रहे हो उसका 4 साल पहले, मतलब 2024 25 23 24 22 23 21 22 मिलाकर के 365 दिन या उससे ज्यादा एक, प्लस आपको 60 दिन नहीं, 182 डेज या मोर, मतलब कि आप इंडिया में 160 दिन भी रह सकते हो, और 365 डेज से ज्यादा भी अगर हो तभी भी आप नहीं माने जाएंगे रेसिडेंट, आप बच गए. तो एक राहत दिया गया है कि जो आदमी इंडिया से बाहर गया वो साल में एम्प्लॉयमेंट के लिए. ये अपने को बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. सेकंड क्या है, ये जो पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन है, सेकंड है कोई भी आदमी विदेश में रहता है, वो अगर इंडिया में आ रहा है विजिट के लिए, कोई भी टूरिज्म हो, फैमिली एक्सेट्रा एंड ऑल दैट, अगर उसका इनकम 15 लाख से, टैक्सेबल इनकम इंडिया का फाइल में 15 लाख से कम है फॉर दैट प्रीवियस ईयर, तो उसको वापस से बेनिफिट दे दिया गया है. 100 ये 60 दिन जो है ये बढ़ करके 182 डेज 182 दिन हो जाता है. मतलब क्या हुआ, आपके नाना दादा जो भी ग्रीन कार्ड होल्डर है वहां पर
कोई भी एल्डरली आदमी है, कोई भी आदमी है, यहाँ पर सर्दी में 3 महीना तो आते ही है, बहुत सर्दी लगता है यूएस में तो, सो दे कैन कम हियर एंड इफ दे आर स्टेइंग इन द यूएस व्हेन दे आर कमिंग हियर, अगर उनका इनकम टैक्स फाइल में इंडिया का 15 लाख से कम है तो वो 60 दिन का उनको भय नहीं रहेगा, उनको रहेगा भाई हम 120 दिन भी नहीं, हम 182 दिन के अंदर में भी रहे तभी भी हम इंडिया में क्वालिफाई नहीं होंगे टैक्सेस में। उसके बाद में क्या एक और राहत है, ये राहत ये डीमेरिट है। डीमेरिट क्या है, आप अगर बड़े टैक्स फाइलर हो, आपके नाना दादा जो भी है 15 लाख से ऊपर का उनका इंडिया में इनकम है वो साल का, तो ये 182 दिन उनको नहीं दिया जाएगा, और 60 दिन तो बहुत कम हो गया, तो बीच का माजरा निकालिए 120 दिन। तो कोई भी इंडिया के बाहर में रहते हैं अगर इंडिया में आ रहे हैं, 15 लाख से ऊपर का इनकम टैक्स में टैक्सेबल इनकम है, तो 365 डेज, अगर लास्ट 4 साल में 365 के उससे ज्यादा दिन रहे हो प्लस 120 दिन या उससे ज्यादा आप रहे हो, 15 लाख के ऊपर का अगर आपका इनकम हो, तब आप उसमें टैक्स रेसिडेंट माने जाओगे। और अगर यूएस में मेरा इनकम ज्यादा है उससे कोई फर्क नहीं सर, वो तो कुछ नहीं है। यूएस में आप ग्रीन कार्ड होल्डर हो तो वहां का तो ऑटोमेटिकली बन जाते हो, वो अपने कवर करेंगे, डुअल सिटीजन भी कवर करेंगे कि दोनों जगह अगर रेसिडेंट हो गए तो भाई क्या हो जाएगा भाई, वहां पर एफटीसी लेके यहाँ पर एफटीसी ले, फॉरेन टैक्स क्रेडिट। लेकिन सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना अपने को, 183 दिन ऊपर वाला तो एवरीवन नोज, 365 दिन भी जानते हैं, 60 दिन भी जानते हैं, लेकिन ये 60 दिन का जो अप डाउन हुआ है, कोई भी एम्प्लॉयमेंट के बाहर जाता है तो राहत है 183 डेज। कोई भी अगर बाहर से इंडिया में आता है, 15 लाख के नीचे का है, मामूली सा डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम है, 182 दिन वापस से बेनिफिट, और 15 लाख से अगर आपका ऊपर का है तभी भी 60 दिन का उनको नहीं फंसाएंगे, 120 दिन तक समय देंगे उनको, राइट। मगर 182 डेज मतलब आपको 15 लाख ना, अप टू 15 लाख सर। अगर 15 लाख के नीचे है तो आपका 365 डेज के आप 700 डेज लास्ट 4 इयर्स में रह लो, लेकिन अगर करंट ईयर में 182 डेज से नीचे आप रहे हो एंड इफ यू आर रिसाइडिंग आउटसाइड, तो यू विल नॉट स्टिल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ रेसिडेंट। ये एक बेनिफिट दिया गया है। 60 डेज का आपको मतलब नहीं? नहीं, मतलब है सर। कैसे? मतलब कैसे नहीं है आपका 60 डेज, मानिए कि आप अगर इंडिया में, ये फॉर एग्जांपल आप बाहर में अगर आप रह रहे हो, सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ऐसे करके जो दिया हुआ है, ये इंडियन ओरिजिन का नहीं है बंदा, मानिए फॉर एग्जांपल, वो एक केस हो गया। दूसरा केस हो गया अगर कि वो सेम ईयर में, जैसे पहला वाला जो आपका एक्सेप्शन दिया हुआ है, सेम ईयर में बाहर जा रहा है और सेम ईयर में वापस आ जाए आपका, तो उसका वो पर्टिकुलर कवर नहीं होएगा। साथ में आपका यहाँ पर 60 डेज का जो पर्टिकुलर रूल है, ये आपका अगर आप देखोगे तो ये अगर आप मानिए 120 डेज से भी पार हो जाता है, आप जैसे पूछेंगे सर 60 डेज का रूल कोई क्या मतलब है, 120 डेज से भी अगर पार हो जाता है, 15 लाख से ज्यादा का इनकम है, 125 दिन रह लेते हैं और 365 डेज से ज्यादा रहेगा, तो आप RNOR रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का भी बेनिफिट आप ले सकते हो। दैट इज सेक्शन 6 सबसेक्शन क्लॉज सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स। मतलब क्या हुआ, RNOR आप रेसिडेंट अभी भी नहीं बनोगे, तो उससे क्या होगा, यूएस का इनकम, इंटरेस्ट इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम, वो उसके ऊपर में इंडिया में आपको ना रिपोर्टिंग करना पड़ेगा वो साल में, ना वो साल में आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। तो RNOR बीच में अभी भी बचा रहा है आपको। ये आपका अमेंडमेंट आया था फ्रॉम ये 1 अप्रैल 2021। ये सब आपने डिस्कस कर लिए। अच्छा, स्पेशल ये डीम रेसिडेंट का, हैव यू हर्ड ऑफ दिस डीम रेसिडेंट? मतलब क्या हुआ, मैं बहुत चालू आदमी हूँ, मैं यूएस में H1B में हूँ, लेकिन यूएस का जो सब्सटैंशियल प्रेजेंस टेस्ट है 183 दिन वाला जो डिस्कस करेंगे, वो मैं ऐसे प्लान करता हूँ कि 150 दिन के ऊपर नहीं जाए वहां पर। इंडिया में भी मानिए कि 150 दिन के ऊपर में नहीं जाए कि 120 दिन के अंदर में, तो ना इंडिया में मैं रेसिडेंट हूं ना यूएस में रेसिडेंट हूं, बट आई एम अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब बाप दादा अनडिवाइडेड इंडिया, या तो मैं इंडिया का सिटीजन हूं, सिटीजन तो हूं ना मैं। तो उसमें क्या होएगा, ना तो वहां पेमेंट करना है या यहां करना है। तो इसमें इन लोग क्या लिया है, बोले कि कहीं अगर पेमेंट नहीं करना है ड्यू टू रेसिडेंस और डोमिसाइल, तो 2020-21 के बाद से आप इंडिया में आपको नेचुरली यहाँ पर रेसिडेंट, डीम रेसिडेंट माना जाएगा। लेकिन आप जब डीम रेसिडेंट होंगे तभी भी आपके लिए एक तो राहत दिया है, आपको डायरेक्टली पहले 3 साल आपको RNOR का बेनिफिट ले सकते हो, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मतलब कि बाहर का इनकम, आपके यूएस का इनकम आपको ना तो रिपोर्ट करना होगा, ना तो आपको उसमें पेमेंट करना पड़ेगा टैक्स। यही जो आपने डिस्कस की है, वी पुट इन हियर। अच्छा, RNOR और का जो अपने अभी बात कर रहे थे, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये देखिए सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। अभी इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि
आप इफ यू सेटिस्फाई एनी ऑफ दीज कंडीशंस तो आप RNOR रहेंगे। एक तो बेसिक तो रेसिडेंट हो गया ना, 120 दिन पार हो गया, 183 दिन पार हो गया तो रेसिडेंट हो गया वो। लेकिन अगर ये कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता तो बीच में एक बफर राहत मिल जाता है उसको RNOR का। तो RNOR का क्या राहत मिलता है? अगर इफ यू आर सेटिस्फाइंग द रेसिडेंसी स्टेटस 183 डेज का, क्या आपका क्लॉज सी का इफ यू सेटिस्फाइंग 120 दिन, 183 दिन एक्सेट्रा, बट स्टिल यू विल बी कंसिडर्ड एज अ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया इन अगर आप पिछले 10 साल में से 9 साल अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो जो 11वां साल है, जो करंट ईयर है, उसमें आप RNOR का बेनिफिट ले सकते हो। RNOR का बेनिफिट क्या हो गया? मतलब कि बाहर का इनकम पे इंडिया में आपको टैक्स पेमेंट करना नहीं पड़ेगा, बाहर का आपका बैंक अकाउंट यहां पर आपको रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, राइट। इसमें सेकंड क्या है आपका? इसमें दूसरा है ऊपर में कि और हैज ड्यूरिंग द 7 प्रीवियस ईयर्स प्रीसीडिंग दैट ईयर इन इंडिया, वो अगर पिछले 7 साल में से 729 डेज और लेस अगर वो यहां पर रहे हैं तो वो RNOR हो सकते हैं। मतलब कि रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब छोटा भाई ऑफ नॉन रेसिडेंट। मेन मुद्दा क्या है सर? ये सब कुछ नहीं है। मेन मुद्दा है कि बाहर का जो इनकम है इंडिया में पैसा पेमेंट करना है कि नहीं करना है, वही मेन मुद्दा है ना। तो नॉन रेसिडेंट नहीं होंगे, RNOR में भी अगर नहीं पेमेंट करना पड़ रहा दैट्स गुड। तीसरा चीज है आपका यहां पर जो मैंने अभी बोला था आपको कि अगर 15 लाख से ऊपर का इनकम है और 120 दिन पार हो गया आपका, बाहर में रह रहे हो, इंडिया में आप आए हो, तभी भी एक बचाव है कि आपको RNOR माना जाएगा। अगर आप 125 दिन रहे हो, 15 लाख से ऊपर का इनकम है, 365 दिन भी 4 साल में आप ज्यादा रहे हो, तो आप रेसिडेंट डायरेक्टली नहीं बनोगे। आपका क्या होगा? अगर 182 दिन के नीचे भी रहे हो वो साल में और 120 दिन के ऊपर में भी रहे हो, तो ये बीच में जो आप तभी भी RNOR का एक तो बफर है आपके पास में। दिस इज RNOR। तो अब इसमें ये एग्जांपल्स आप लोग देख लीजिएगा, ये सब अपने डिस्कस कर लिए। जो मैंने राहत जो बताया था कि इंडिया से बाहर अगर जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए तो उसके लिए तो कुछ तो राहत देगा ना। तो वो 60 दिन वाला जो रूल है दैट इज बीन एक्सटेंडेड टू 183 डेज। 182 डेज का तो है ही अपने पास में। और बाहर से अगर इंडिया में रिटर्निंग इंडियन है कि बोरिया बिस्तर लेकर के इंडिया में आ रहा है, तो बेनिफिट वैसे ही जो मैंने बोला 15 लाख के नीचे का अगर फाइल है इंडिया में वो साल में, तो 182 दिन तक वो इंडिया में रह सकते हैं, वो तभी भी वो रेसिडेंट माने नहीं जाएंगे। और 15 लाख के ऊपर का है तो 120 दिन तक इंडिया में रह सकते, 119 दिन तक रह सकते हैं। लेकिन अगर 125 दिन तक रहे और 15 लाख के ऊपर का इनकम है, 365 दिन लास्ट 4 इयर्स में रहे, तभी भी RNOR का बेनिफिट एक्सप्लोर कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब बेनिफिट ऑफ RNOR क्या है कि एनी फॉरेन इनकम इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया अनलेस रिसीव्ड इन इंडिया। ये तो अपने को पता है ना, नॉन रेसिडेंट भी का अपना बाहर का फॉरेन इनकम इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया, राइट। तो RNOR का भी ये है कि फॉरेन इनकम इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया अनलेस रिसीव्ड इन इंडिया और डिराइव फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल इन इंडिया। पोएम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो अगर वो इंडिया के बाहर में है तो आपका वो RNOR स्टेटस में इंडिया में पेमेंट करने का आपको दरकार नहीं है। नो टैक्स ऑन ग्लोबल कैपिटल गेन्स, बाहर का डिविडेंड, बाहर के इंटरेस्ट, बाहर के रेंट, ये सब चीज में कोई भी ग्लोबल आपका वहां का बैंक अकाउंट है, आपका वहां का डीमैट अकाउंट है यूएस में, आपको यहां पर इंडिया में यू डोंट नीड टू रिपोर्ट एनी ऑफ दैट इन दीज शेड्यूल्स इन इंडियन ITR। अब फॉर रिटर्निंग इंडियंस, कोई अगर बोरिया बिस्तर लेकर के इंडिया में आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो अब क्या होएगा? व्हेन ही इज कमिंग, तो सरकार आपको 2-3 साल का राहत देती है कि भाई वहां पर जो संपत्ति है आपका, वहां पर जो एसेट्स है उसको आप सल्टा दो, रेमिटेंसेज आप ले आओ, आई विल नॉट टैक्स यू, आई विल अलाउ यू 3 years इफ यू आर अ रिटर्निंग इंडियन। आप बोरिया बिस्तर लेकर के यहां पर आ रहे हो तो आप तभी भी 3 साल में यू कैन प्लान टू सेल ऑफ योर फॉरेन एसेट्स, यू विल गेट कैपिटल गेन देयर इन द US और एनी कंट्री। वो इंडिया में आपको टैक्सेबल नहीं होगा। वही तो RNOR का मतलब हुआ फॉर रिटर्निंग इंडियंस ऑल्सो। तो जो रिटर्निंग इंडियन है कि बीच में वापस जाने के नहीं, वो सब नहीं, रिटर्निंग इंडियन है, तो उनका US में जितना भी कैपिटल गेन्स है, कुछ भी पेमेंट है, उनका 3 साल तक उनको राहत मिलेगा फॉर RNOR। So this is a tax planning opportunity for returning Indians की for the first 3 consecutive financial year आपको RNOR का आपको ऑप्शन मिलेगा। So you can sell off your assets, you can close your foreign accounts, you can do your tax planning। देखिए RNOR versus ROR plus NRI। अब इसमें we know global income is taxable only in the case of resident but ordinary resident। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट तो छोटा भाई है NR का, जो अभी बोले थे नॉन रेसिडेंट, तो बाहर का तो इनकम टैक्सेबल नहीं होएगा ना। फॉरेन एसेट्स भी रिपोर्ट नहीं करना होगा पहले 2 केस में, NRI और RNOR में। DDAA के बेनिफिट्स तीनों में मिलेंगे, डिपेंड्स ऑन दी टैक्स ट्रीटी। फॉरेन इनकम डिस्क्लोजर जो है US में जो मैं कमा रहा हूं, दुबई में जो कमा रहा हूं, वो अपने को पहले 2 केस में रिपोर्ट करने का दरकार नहीं है, सिर्फ ROR में अपने करेंगे। सो व्हाट आर द की बेनिफिट्स?
रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 जो आपका, जो मैंने इसमें कॉपी भी किया था, उसमें कैटेगरिकली लिखा हुआ है लास्ट 7 इयर्स में 729 डेज से कम, क्या लास्ट 10 साल में से 9 साल आप नॉन रेसिडेंट हो। मैं और बोल रहा हूं, एंड नहीं बोल रहा हूं इसमें। तीसरा है बीच में बाहर में रहते हो, बीच में इंडिया में आए हो, 15 लाख के ऊपर का अगर आपका फाइल है तो क्या होगा, 120 दिन तक आप नीचे रह सकते हो, लेकिन 25 दिन रह लियो 125 दिन, तो 182 दिन के नीचे हो तो RNOR भी है, एक बचाव है आपके पास में। ये कंसेप्ट समझने का इंपॉर्टेंस था अपना। ओके, अब यूएस का टैक्सेशन थोड़ा सा समझते हैं। इंडिया का तो अपने पास मोटा मोटी आइडिया था एंड वी हैव जस्ट ब्रश्ड इट। अब यूएस का क्या है, देखिए यूएस में टैक्स रेसिडेंट होने का मतलब क्या हुआ। एक तो क्या होता है यूएस का ग्रीन कार्ड, ये देखिए ग्रीन कार्ड ऐसा लगता है, थोड़ा सा मैं कवर किया हूं। सो ग्रीन कार्ड इज बेसिकली कि एक पर्टिकुलर आपका फॉर्म है वहां पर, वो आपको मिल जाता है तो यू आर द परमानेंट रेसिडेंट वहां पर, सिटीजन आप नहीं हो बट यू आर द परमानेंट रेसिडेंट। तो परमानेंट रेसिडेंट का मतलब क्या हुआ कि टैक्स पर्सपेक्टिव से यूएस में जब आप 1040 मतलब वहां के जो आईटीआर है वो आप फाइल करोगे तो इंडिया में जो आपका इनकम है वो भी आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, उसके ऊपर भी टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा आपको वहां पर। तो हर आदमी कोशिश ये करता है यूएस में कि भाई मेरा अगर ग्रीन कार्ड हो तब तो फाइल उनको 1040 एज अ रेसिडेंट करना ही पड़ेगा। 1040 NR नॉन रेसिडेंट एज फाइल नहीं कर सकते हैं वो, राइट। बट उसका भी एक एक्सेप्शन है, वी विल गो थ्रू इट। तो पहला चीज क्या है, फॉर अ पर्सन टू बिकम अ टैक्स रेसिडेंट इन द यूएस ही नीड्स टू बी अ सिटीजन। पहला चीज वो तो पता है। तो टैक्स रेसिडेंट बन गए तो क्या हो गया, इंडिया का भी इनकम यूएस में टैक्स हो जाएगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा। सेकंड क्या है, ग्रीन कार्ड होल्डर जो अभी हमने दिखा है, परमानेंट रेसिडेंट जिसको बोलते हो। तीसरा क्या होता है, जैसे 182 दिन 120 दिन जो अपना इंडिया में है वैसे इनका कैलकुलेशन है, बहुत इजी कैलकुलेशन है, उसको बोलते हैं SPT, सब्सटैंशियल प्रेजेंस टेस्ट। उसमें क्या होता है, करंट ईयर में फॉर एग्जांपल आप कितने दिन रहे हो, लेट्स कैलकुलेट 120 दिन रहे हो तो 1:1 कैलकुलेट होता है। अच्छा 183 दिन पहुंचने के लिए 120 दिन तो 1:1 करंट ईयर में रह लियो। लास्ट ईयर में कितने दिन रहे थे, 210 दिन, तो 210 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 1/3, तो 210 डिवाइड बाय 3 कितना हो गया अपना 70। ये साल में कितना मैंने बोला 120, पिछले साल में कितना बोला जो आपने प्रपोर्शन करके किया 70, और उसके पिछले साल मतलब 2023 में कितने दिन रहे थे, मानिए 90 दिन, और उसका 1/6 होगा, 1/6 होगा, तो 1/6 90 का कितना होता है 15, तो 15 प्लस 70 प्लस 120 दिन कितना हो गया सर 205 हो गया। तो ये 205 हो गया, तो ये क्या बोलता है आपका, यू कैन क्वालिफाई अगर आप 31 डेज करंट ईयर्स में यूएस में ज्यादा रह रही है 31 डेज से, तो अपने करंट ईयर में कितना रह रहे थे अपने, अभी बोले थे 120 दिन बोले थे ना अपने, तो 31 डेज से तो ज्यादा रह लिया अपने। फर्स्ट कंडीशन यूएस का टैक्स का बात कर रहा हूं। सेकंड है 183 डेज ओवर द लास्ट 3 इयर्स, तो 183 तो अभी कैलकुलेट किए सर, आप बोले 205 दिन, तो ये तो क्या हो गए, आप तो वहां के टैक्स रेसिडेंट हो गए एज पर सब्सटैंशियल प्रेजेंस टेस्ट। इससे क्या मतलब होता है, यूएस में आप टैक्स रेसिडेंट हो गए, आप एनआरआई हो नहीं हो, एनआरआई डेफिनेशन होता है इंडिया टैक्स पर्सपेक्टिव से। आप बोलेंगे सर हम तो एनआरआई है तो हम तो यूएस में भी नॉन रेसिडेंट है, ये कौन सा लॉजिक हुआ। अरे एनआरआई का मतलब हुआ कि इंडिया में आप दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो, 182 दिन से ज्यादा, 182 या 182 दिन से ज्यादा इंडिया में नहीं रह रहे हो, और 61C भी आप सेटिस्फाई कर रहे हो, मतलब कि लास्ट 4 साल में 365 दिन से कम रहे हो और 60 दिन से कम रहे हो आप, तो आप इंडिया में एनआर हो गए हो। तो वो एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडियन उसका परिभाषा है, लेकिन वो अगर आप इंडिया में एनआरआई हो तो यूएस में जरूरी है क्या आप एनआरआई होगे, तो यूएस लॉ से देखना है अपने को। यूएस लॉ में अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हो, यूएस लॉ में अगर आप सिटीजन हो, यूएस लॉ में अगर SPT का आप 183 दिन या तो करंट ईयर में 31 दिन ये आप सेटिस्फाई कर लेते हो एनी ऑफ द कंडीशन, सो यू विल हैव टू रिपोर्ट योर ग्लोबल इनकम एंड पे टैक्सेस, सिंपल चीज है। तो आप यू हैव बिकम अ यूएस टैक्स रेसिडेंट हियर। अच्छा इसमें कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन जैसे क्या है सर, पड़ोसी की बेटी है वो गई है वहां पर कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए, तो वो एक होता है F1 वीजा बोलते हैं, स्टूडेंट्स लोग के लिए होता है। H1B वीजा होता है, वर्क वीजा होता है अपना, ग्रीन कार्ड तो अपने को ऑलरेडी पता है। तो अगर F1 वीजा में गई है तो हर आदमी F1 में कॉलेज में पढ़ेगा तो बंक तो मारेगा नहीं ना, वो तो कॉलेज में रहेगा, तो यूएस में तो 183 दिन से ज्यादा ही रहना चाहिए उसको, राइट। तो हर आदमी इसका मतलब रेसिडेंट हो जाए स्टूडेंट के लिए, हर आदमी को ग्लोबल इनकम पेमेंट करना पड़े, तो इट इज बिकम डिफिकल्ट हो जाता है ये। तो उसके लिए एक एक्सेप्शन है दैट इफ एनी स्टूडेंट हु इज ऑन F1 वीजा इन द यूएस फर्स्ट 5 इयर्स उनको राहत मिलता है टू फाइल एज अ नॉन रेसिडेंट, ये एक एक्सेप्शन है यूएस लॉ में। सो नॉन रेसिडेंट जैसे आप यूएस में डिक्लेयर हो गए तो व्हाट इज द बेनिफिट, ओनली यूएस सोर्स्ड इनकम हैज टू बी
रिपोर्टेड इन योर 1040 NR। 1040 जैसे अपना ITR 1 2 3 4 5 6 7 जैसे होता है, वैसे उनका फॉर्म 1040 एक तो बोल करके फॉर्म होता है, मेन फॉर्म। तो 1040 NR, नॉन रेसिडेंट का भी 1040 NR हो गया। सो दैट पर्सन नीड्स टू ओनली रिपोर्ट द इनकम विच हैज बीन अर्न्ड इन द US। सिंपल चीज है ये चीज। अच्छा, दूसरा चीज है, देखिए फेडरल टैक्स है, स्टेट टैक्स भी है। फेडरल टैक्स भी है, फेडरल टैक्स का टैक्स स्लैब्स है। टैक्स स्लैब्स मतलब कि क्या हो गया, जैसे अपना प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है कि हायर इनकम पे हायर टैक्स रेट होगा, वैसे उनका है, और उनका इन्फ्लेशन एडजस्टेड है। सैडली अनफॉर्चुनेटली हम लोग का इंडिया में इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है, राइट। सो अभी तो 4 से 8, 8 से 12 वैसे करके हो गया, बट उनका हर साल इन्फ्लेशन एडजस्टेड उनका टैक्स स्लैब चेंज होता है। तो अब उसमें क्या है कि अलग अलग कैटेगरीज है फाइलिंग के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अगर यूएस में रेसिडेंट हो गए, तो आपकी वाइफ, अगर वाइफ 0 इनकम भी कमा रही है यूएस में, तो आप और आपकी वाइफ मिल करके आप रिटर्न एक फाइल कर सकते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ मैरिड फाइलिंग जॉइंटली। उसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो टैक्स स्लैब है और इनका जो टैक्स स्लैब है जोड़ करके मैरिड फाइलिंग जॉइंटली का टैक्स स्लैब हो गया यहां। मतलब कि आप अगर 400,000 इनकम भी कमाते हो, अगर आप सिंगल करके अगर आप फाइल करो या मैरिड फाइलिंग सेपरेटली करो, तो हो सकता है कि आपको $60,000-70,000 का पेमेंट करना पड़े टैक्स का। लेकिन आप मैरिड फाइलिंग जॉइंटली में अगर $400,000 का आप रिपोर्ट करते हो, तो हो सकता है सिर्फ $25,000-30,000 आपको पेमेंट करना पड़े। तो अलग अलग कैटेगरीज है यूएस में। मैरिड फाइलिंग जॉइंटली एक है जो मैंने आपको बताया सबसे बेनिफिशियल। दूसरे हेड ऑफ द हाउस होल्ड। हेड ऑफ द हाउस होल्ड का मतलब क्या हुआ, मुखिया, मतलब कि डिपेंडेंट्स। फैमिली में पापा है, मम्मी है, बच्चे हैं 17 साल से छोटे, और उनका 50% से ज्यादा खर्चा मैं उठा रहा हूं, वो नहीं उठाते, वो नहीं उठाते। तो आप एक हेड ऑफ द हाउस होल्ड, मुखिया का आप एक तो स्टेटस ले सकते हैं। उसमें भी बहुत आपका अच्छा बेनिफिट्स रहता है। टैक्स स्लैब्स आर हायर एंड द टैक्स रेट्स आर लोअर। तीसरा होता है मैरिड फाइलिंग सेपरेटली। मैरिड फाइलिंग सेपरेटली मतलब क्या हुआ कि कोई कारण से आप अपनी वाइफ के साथ में, आप लोग साथ में नहीं हो लेकिन लीगली डिवोर्स नहीं हुए, एंड यू गाइज आर स्टेइंग सेपरेटली फॉर मोर देन 6 months, तो उनको वो MFS मैरिड फाइलिंग सेपरेटली फाइल कर सकती है, ये मैरिड फाइलिंग सेपरेटली फाइल कर सकती है। तो उनसे क्या होता है, इसमें सबसे कम बेनिफिट दिया जाता है। सबसे कम बेनिफिट क्यों दिया जाता है, बिकॉज नोबडी वुड वांट टू सपोर्ट कपल स्टेइंग अपार्ट। तो सिंपल चीज है। तो $5 से भी ज्यादा का अगर इनकम हो यूएस में आपका, तो आपको फाइल करना पड़ेगा मैरिड फाइलिंग सेपरेटली। लेकिन अगर नॉर्मल में एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है, ये अपने इनकम टैक्स एक्ट में इंडिया का सुनिए स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 24B, जो अपना हाउस प्रॉपर्टी का 30% ऑफ द टोटल एनुअल वैल्यू जो है म्युनिसिपल टैक्स माइनस करके जो अपना आता है, राइट। तो उसमें भी अपना यहां पर एड हॉक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है अपने को। स्टैंडर्ड डिडक्शन मतलब क्या हुआ, हर आदमी के ऊपर $14,600 माफ यूएस में, 14,600। मैरिड फाइलिंग जॉइंटली कर रही है तो कितना हो गया, 29,200। आपके माता पिता 65 ईयर्स या उससे ऊपर है, जैसे अपना 60 साल है, उनका 65 साल है। 65 साल से अगर ऊपर में है तो उनका क्या हो गया, 1550 और जुड़ जाएगा उनका। तो उनका क्या हो गया, $32,300 तक उनको टैक्स ही पेमेंट नहीं करना है। लेकिन इंडिया में यह बेनिफिट नहीं है, ये वाला चीज। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का वो बेनिफिट आ जाता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हाँ जी, मैरिड का ये एक ऑप्शन सेपरेटली और जॉइंटली नहीं सर, देखिए 31 दिसंबर का दिखते है वो कि आप आपकी मिसेस के साथ में साथ हो, और वहां पर क्या होता है कि पहले आप अगर डिवोर्स लीगलाइज सोलमनाइज नहीं होता है, तब आप मैरिड फाइलिंग सेपरेटली ही आपको फाइल करना है। क्योंकि 6 महीने से ज्यादा अगर आप अलग रह रहे हो, तो उनके पास क्या है, W2, जो आपका जैसे हम लोग का फॉर्म 16 होता है, वैसे उन लोग का W2 होता है। मैं दिखाऊंगा कैसा होता है, कितना आपका सैलरी आया है, आपका क्या टैक्स नंबर है, कितना विदहोल्डिंग टैक्सेस है, कितना मेडिकेयर टैक्सेस है, रिटायरमेंट प्लान क्या, एक्सेट्रा। तो उसमें एड्रेस आपका दिखाएगा कैलिफोर्निया, आपकी मिसेस का दिखाएगा टेक्सास। तो IRS को 2 मिनट में पता चल जाएगा भाई कि पूरा साल वो इधर रही है, आप इधर रही है, और आप मैरिड फाइलिंग जॉइंटली कर रहे हो। सो अनमैरिड फाइलिंग अनमैरिड सिंगल होगा सर। इज दैट सेम एज मैरिड फाइलिंग सेपरेट? नो, सिंगल, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सिंगल मतलब अनमैरिड या डिवोर्स्ड। अगर मैं डिवोर्स्ड हो गया हूं तो MFS तो मेरे को फाइल करना ही नहीं है। सिंगल का आपका 20 तक का राहत है, मतलब बेनिफिट्स है। Even tax rates are different for yes, tax rates are different sir. All the tax rates you will get online. स्लैब्स है, अलग अलग स्लैब्स है। मैरिड होने से लफड़ा हो गया। मैरिड फाइलिंग नहीं सर, मैरिड फाइलिंग जॉइंटली अगर आप करोगे तो बहुत बेनिफिशियल है। अगर मिसेस भी 0 इनकम भी कमाती है तो पूरा बेनिफिट, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है सर। लेकिन आप जैसे सर जैसे बोले कि अगर आप अविवाहित हो या तो आप डिवोर्स्ड हो,
तो आप सिंगल में आ जाओगे, यू विल हैव टू फाइल एज सिंगल, आप एमएफएस नहीं कर सकते. That is better than married filing separately. यस यस डेफिनेटली. मैरिड फाइलिंग सेपरेटली यहाँ है, सिंगल इधर है, एमएफजे इधर है, हेड ऑफ द हाउस होल्ड इधर है. What about widow and widower? सॉरी सर. What about widow and widower? सर सर्वाइविंग स्पाउस, सर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है. तो सर्वाइविंग स्पाउस क्या हो गया सर, बहुत मतलब एक्सीडेंट हो गया, या तो हस्बैंड पास अवे कर गया या तो वाइफ पास अवे कर गया, एंड ऑन द डे ऑफ डेथ दे वर मैरिड. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. तो क्या हो गया आपका, वो साल प्लस अगले 2 साल, वो साल प्लस अगले 2 साल यू कैन फाइल एज अ सर्वाइविंग स्पाउस इफ यू हैव नॉट री मैरिड. अगर आप रीमैरिड कर लिए तो आप वापस एमएफजे, सबसे अच्छा बेनिफिट मिला. ये बेनिफिट क्यों है सर का बहुत अच्छा क्वेश्चन, बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू अ कैटास्ट्रोफिक इवेंट इन योर लाइफ, सो दे डोंट वांट टू टैक्स यू एज सिंगल. तो सिंगल से ऊपर में आपका सर्वाइविंग स्पाउस हो गया. ये एक तरीके का सिंगल है, बट थोड़ा सा और बेनिफिट है मीडियम में. So these are different category For filing. Indian parents, हाँ sir. she will get Indian parents sir, if they are in the US for 31 days plus 183 days, as I told you, 1/3 of the last year number of days they've stayed, 1/6 of the last to last year. If cumulatively if they are staying for 183 or more days in the US, then they become tax resident, even though they may not be on a green card, they may not be on H1B, they may not be on these visas. But they will have to report their global income in 1040 in the US and they need to pay taxes. India में अगर आप पेमेंट कर रहे हो वो टैक्सेस का, और सेम यूएस में जा रहा है, तो इफ यू आर नॉट गेटिंग अ रिफंड, इफ यू आर मेकिंग पेमेंट, तो यहां पर जो पेमेंट आप किए हो, यू कैन क्लेम दैट एज अ फॉरेन टैक्स क्रेडिट बाय फाइलिंग फॉर्म 1116 in the US. No, I am talking about parents are residing in India, whether their children can claim standard deduction on that. So standard, if the parents are green card holders, if the parents are green card holders, they have to file. No, okay. If parents are green card holders, sir has a very good question. Sir is like कि sir 183 days ये सब कुछ नहीं है, 0 day रहते हैं parents, elderly parents इंडिया में, but they are green card holders. बहुत जन लोग होते हैं green card holders. Sir, they have to file 1040. They cannot file 1040 and are non-resident, they cannot file. Green cards are naturally tax residents. So you will have to report, US में कोई खास इनकम नहीं है, you will have to report the Indian income in US and you will have to pay taxes there. अब बोलेंगे सर इंडिया में भी मैं करूं, वहां पर भी करूं, तो सर जब आप इंडिया में कर रहे हो 31 जुलाई में, तो अब जो वहां का पेमेंट किए हो, टेक द टैक्स क्रेडिट हियर इन इंडिया. We will come to that. Sir, in US, state to state tax. Yes, I was coming to this, sir. अब देखिए on this slide, state tax residency rules. अब कैलिफोर्निया का, if you are staying in California, you will file for federal taxes. There are different taxes, 1040. Okay. For California, if you are a resident, if you are staying in California for 183 days, etc., जो भी है, it has its own state rule. You will have to file California resident form 540. एंड कैलिफोर्निया में क्या है, आप जो इनकम कमा रहे हो, सैलरी W2, आई विल शो यू अ W2, उसमें फेडरल का दिखाया हुआ है $300,000 फॉर फेडरल इनकम, उसके ऊपर फेडरल टैक्स लगेगा, एमएफजे जो अभी डिस्कस की, और 300,000 का नीचे में लिखा हुआ है स्टेट इनकम, वो 600,000 नहीं हुआ, यू आर टैक्सिंग फॉर स्टेट ऑन द सेम इनकम. The state is taxing tax on the same income, so you will have to pay. ये 5 से 12-13% तक रहता है. It differs from state to state, but you have to compute the state tax also as respect to the different states. There are 7-8 states. We will come to that. They don't have any state tax like obligation. Right? Financial year, calendar year, यहाँ का भी Sir, calendar year है उनका financial year means 1st January to 31st December. And for India, तो we know already know that. तो US जैसे अपना 31st July is the last date for your last date for non-audit files for individual filing. वहां पर है 15th of April जो अभी गया है. So it was a very busy tax season. तो तब तक अपने को या तो पेमेंट करना है या तो एक्सटेंशन लेना है for 6 months by filing 4868. तो आप पेमेंट तो करना है सर 15 तारीख तक, आप उसको एक्सटेंशन ले सकते हो 6 महीने 15 अक्टूबर तक. यू कैन फाइल योर टैक्स रिटर्न देन बाय फाइलिंग 4868. नो क्वेश्चंस आस्क्ड. आपको बुखार है, ये है, नथिंग. 4868 फाइल करिए, फाइल योर टैक्स रिटर्न्स देन 6 months later, नो इशू. For the same income, we are paying two taxes. एग्जैक्टली सर. तो फेडरल में 21% पे किए सर, बोले टैक्स स्लैब के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से आया है. स्टेट में सर 9% पेमेंट किए. टोटल कितना पेमेंट किए सर? 30% हो गया सर. सेल्फ अर्नड इनकम पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स पेमेंट की है 3%. सर मेडिकेयर और फीका, वहां पर सोशल सिक्योरिटी इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन द यूएस, सो दे गिव यू अनएम्प्लॉयमेंट का कंपनसेशन, सोशल सिक्योरिटी फंड कहां से आएगा, तो दे चार्ज दैट ऑल्सो.
क्यूमुलेट करके 20 से 25% टैक्स लग सकता है। अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग स्लैब में अलग अलग टैक्स रेट्स लगे। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि किसी का 20-25 के बीच में रहे, इट वेरीज लाइक दैट। टैक्स प्लानिंग करना पड़ता है, टैक्स क्रेडिट्स लेना पड़ता है। आपके डिपेंडेंट्स है, बच्चे हैं, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट। आप कोई गाड़ी खरीदे हो ईवी का, तो ईवी मोटर व्हीकल क्रेडिट। कोविड के टाइम में आपका बिजनेस आधा हो गया, तो वहां पर ERTC, एम्प्लॉयमेंट रिटेंशन टैक्स क्रेडिट। बाहर का भी इनकम है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट। ऐसे करके अनेक, देयर मेनी मेनी टैक्स क्रेडिट्स। टैक्स क्रेडिट्स क्या हो गया? टैक्स इनकम को कम नहीं करता है, टैक्स लायबिलिटी को कम करता है। So try to understand. Deductions, they reduce the income, but tax credits are one-to-one, they reduce the tax liability. And there are certain tax credits which, even if your tax liability is $300, but that tax credit is $2,000, you will get a refund of $1,700. सोचिए, tax credit से जेब भर रहे हैं अपने। So it's very interesting. So how is to form an 11-16 करके कुछ 11-16, so that is foreign tax credit. इंडिया में अगर आप फॉर एग्जांपल TDS कटा है और आपका रिफंड नहीं मिला है, मतलब कि 12,75,000 से ऊपर का इनकम है, यू हैव पेड टैक्स टू द गवर्नमेंट, यू हैव नॉट जस्ट withheld the tax and returned it. No, if you have paid tax in India and on the same income, if you are reporting and if you are a resident in the US, you will pay tax as per your slabs, as per your category. तो जो इंडिया में पेमेंट की है सेम इनकम पे दोनों नहीं होता है ना, तो उसके लिए टैक्स ट्रीटीज आते हैं, DTA। तो और टैक्स क्रेडिट्स आते हैं, उसमें मेंशन होता है। दो टाइप का होता है, एक टैक्स एग्जेम्पशन, एक टैक्स क्रेडिट। टैक्स एग्जेम्पशन क्या हो गया? सोशल सिक्योरिटी। बूढ़े लोग हैं यूएस में, उनको सोशल सिक्योरिटी का इनकम मिलता है $20,000 $22,000। इंडिया में आ गई, एज हो गई है 65-70, लेकिन उनको कंटिन्यूस मिलते जा रहा है पेंशन, सोशल सिक्योरिटी एक्सेट्रा। तो DTAA में एग्जेम्पशन मेथड इज ऑल्सो देयर, जैसे टैक्स नहीं होगा ये। There are few things in DTAA they say कि US का social security will not be taxed here in India even if you are tax resident in India। लेकिन ज्यादा करके जो है डबल, जब टैक्स मतलब इनकम डबली टैक्स होता है तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट यू हैव टू टेक। ट्रीटी रहना चाहिए ना? ट्रीटी है सर, अपना ट्रीटी है। अच्छा, ये सब अपने यू गाइस कैन सी दिस। अच्छा, SPT तो आपने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है सर। What? 1-to-1 for the current year, last year 1/3, last to last year 1/6, 183 days है, उससे ज्यादा होना चाहिए तब टैक्स रेसिडेंट बन गया, या तो ग्रीन कार्ड या तो सिटीजन। ओके, प्लानिंग फॉर टैक्स रेसिडेंसी ये अपने ऑलरेडी पहले डिस्कस की है। कोई भी बाहर के आदमी, वहां के आदमी इंडिया में आ रही है, बोलते कि अब मेरे को NRE को चेंज करके डोमेस्टिक अकाउंट बनाना है, आई डोंट वांट टू स्टे देयर एनीमोर, आई वांट टू कम हियर। मेनी पीपल, उनका ये मंशा रहता है, तो उसमें क्या करते हैं, दे विल कम बैक टू RNOR, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, फर्स्ट 3 years तक उनको बेनिफिट दिया जाता है। ये व्हाई? बिकॉज उनका वहां पर भी तो संपत्ति है, वहां पर भी तो उनको सटाना है। सो अगर वो सब उठा करके इंडिया में भी टैक्स पेमेंट करे, वहां पर भी तो करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, बिकॉज इनकम इज अक्रूइंग देयर, तो उनके लिए प्रॉब्लम होगा। सो दैट्स व्हाई RNOR इज फॉर रिटर्निंग इंडियंस ऑल्सो बैक इन इंडिया, तो उसमें टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। वी ऑलरेडी कवर्ड ऑल दीज थिंग्स। अच्छा, ये क्या है? ये देखिए, ये ट्रैवल हिस्ट्री और दिया जाता है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से। I-94 क्या है? I-94 इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वीजा, F1 वीजा, जो स्टूडेंट लोग को मिलते हैं। तो स्टूडेंट लोग का सर मैं क्या बोला आपको, यहाँ पर 25 से 30% डायस्पोरा इंडिया का तो स्टूडेंट्स लोग है ना, यूएस में रहते हैं। तो स्टूडेंट्स लोग का क्या है, तो यूनिवर्सिटी में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, कैंपस में रहते हैं। 183 क्या होता है, 283 300 दिन रहेंगे। सो दिस मींस दे बिकम अ टैक्स रेसिडेंट? नो, एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट 5 years एग्जेम्पशन। तो दे विल ओनली रिपोर्ट द इनकम व्हिच दे हैव अर्न्ड ऑन देयर OPT, ICT, वहां का जो इंटर्नशिप्स होते हैं क्या जॉब पे। रिसर्चर्स अप टू 2 years। Sorry? रिसर्चर्स, PhD। हाँ, रिसर्चर्स यहाँ पर सर, एग्जैक्टली रिसर्चर्स का यहाँ पर वी हैव सीन, up to 2 years। यहाँ पर वी हैव मेंशन्ड समवेयर ना फॉर रिसर्चर्स, वी विल कम टू दैट आल्सो, लास्ट में है उसमें। दैट्स फॉर टीचर्स एंड ऑल दैट, दैट्स फॉर 2 years। मास्टर्स करते हैं 2 years है, ग्रेजुएशन करते तो 5 years है, बट फर्स्ट 5 years तक का बेनिफिट है। अब नाउ दिस क्वेश्चन एवरीवन वाज हिंटिंग, सर ग्रीन कार्ड तो है, और ग्रीन कार्ड है और हम यूएस में रहते नहीं है, ओल्ड आदमी है, इंडिया में रहते हैं, लेकिन ग्रीन कार्ड हम सरेंडर नहीं किए। इंडिया आई एम स्टेइंग फॉर मोर देन 182 days फॉर श्योर, 182 और मोर, तो आई एम अ टैक्स रेसिडेंट इन इंडिया, आई एम अ टैक्स रेसिडेंट इन द यूएस, तो दिस विल बी अ बिग प्रॉब्लम। सो टैक्स ट्रीटी, वी कैन टेक द बेनिफिट ऑफ टैक्स ट्रीटी। टैक्स ट्रीटी क्या बोलता है, ग्रीन कार्ड आप होल्ड करते हो या तो यूएस में कोई तरीके से 183 days आपका क्वालिफाई हो गया, एंड इन इंडिया ऑल्सो यू स्टेड फॉर मोर देन 182 और मोर, तो इंडिया का इनकम
इंडिया का जब फाइलिंग करेंगे तो यूएस का इनकम रिपोर्ट करना पड़ेगा. यू विल पे ऑन ग्लोबल इनकम टैक्स इन इंडिया, एंड इन द यूएस ऑल्सो यू विल हैव टू रिपोर्ट द इंडियन इनकम और द फॉरेन सोर्स्ड इनकम, एंड यू विल हैव टू पे टैक्स एज पर द यूएस टैक्स रेट्स. तो दोनों जगह आप टैक्स पेमेंट कर रहे हो. तो अब इसमें क्या होता है, टैक्स ट्रीटी के हिसाब से देयर इज अ टाई ब्रेकर रूल. There is a tie-breaker rule as per Article 4 sub Article 2, wherein they say कि सर दो जगह का आपका मार मैं नहीं करने दूंगा. Elect one place. अब इलेक्शन के लिए they've got different parameters. They've got different parameters. First अगर satisfy होता तो second देखना नहीं है, second satisfy होता तो third नहीं देखना है. First क्या है आपका कि tie-breaker rule का permanent home. घर मतलब कि परमानेंट होम मतलब ओनरशिप रेंटल वाला हिसाब नहीं है, रेंटल भी हो सकता है, बट परमानेंट होम कितना साल रहे हैं वहां पर, कितना आपका टैक्स रिसीट्स है वहां पर, म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट किया हुआ, क्या रेंट रिसीट्स है, परमानेंट ओनरशिप का है क्या नहीं, आपका मनसा क्या है वहां पर रहने का. अगर उनके पास दोनों जगह घर है, बहुत सारे क्लाइंट्स लोग के दोनों जगह घर रहता है और दोनों जगह रहते हैं, तो द नेक्स्ट थिंग कम सेंटर ऑफ वाइटल इंटरेस्ट. सेंटर ऑफ वाइटल इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, कहां पर यू आर पर्सनली एंड इकोनॉमिकली क्लोजर, मतलब इनकम कहां पर ज्यादा है और पर्सनली आप कहां पर ज्यादा क्लोजर हो. तो इफ यू आर इन द यूएस तो आप इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट इलेक्ट हो सकते हो और यूएस के लिए आप रेसिडेंट इलेक्ट हो सकते हो. तो यू फॉर इंडिया व्हेन यू आर फाइलिंग द आईटीआर यू डोंट हैव टू रिपोर्ट यू आर एन एनआरआई, सो यू डोंट हैव टू रिपोर्ट द यूएस टैक्स. लेकिन उसके लिए आपको फॉर्म 67 फाइल करना होगा डीटीडब्ल्यूए का बेनिफिट के लिए. टीआरसी टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट आपको अप्लाई करके निकाल करके साथ में फाइल करना होगा. ऑल दीज नीड टू बी डन बिफोर द इंडियन आईटीआर इज फाइल्ड. वो सब भी अपने देखेंगे, बट टाई ब्रेकर रूल्स कैन हेल्प यू व्हेन यू आर बीइंग क्वालिफाइड एज अ टैक्स रेसिडेंट इन मोर देन वन कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया. Okay, so in the US, अगर if in the US you are taking a stand कि I am not a tax resident in the US, I am taking a DTEE benefit. मैं बोलता हूँ इंडिया में ज्यादा मेरा इनकम है, इंडिया में मेरा ज्यादा यहाँ पर आई एम मोर क्लोजली कनेक्टेड, तो आई विल हैव टू फाइल अ फॉर्म विच इज 8833. ये जितना भी जैसे फॉर्म 67 है इंडिया में, इक्विवेलेंट 8833 है यूएस में. इफ यू आर टेकिंग एनी बेनिफिट इन द फेवर ऑफ सम अदर कंट्री and if you're taking any tax treaty position you have to file this 8833 in the US. ये कैसे दिखता है, ऐसा दिखता है आपको. ये 1040 नहीं, ये 1040 है नॉर्मल जो है आपका, 8833 विल सी. अब ये 1040 है, दिस इज अ टैक्स रिटर्न. अब टैक्स रिटर्न में देखिए फाइलिंग स्टेटस व्हाट इज मेंशन्ड एज वी डिस्कस, सिंगल, मैरिड फाइलिंग जॉइंटली, हेड ऑफ हाउस होल्ड, क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस, मैरिड फाइलिंग सेपरेटली. मैंने क्या सिलेक्ट किया यहाँ पर, मैरिड फाइलिंग जॉइंटली. इनका टोटल इनकम कितना आ रहा है ऊपर W2 से, सैलरी से, हस्बैंड वाइफ का मिला करके $331,000. उसके बाद में क्या है आप देखिए डिविडेंड्स कितना आ रहा है इनका यूएस में, इनका प्लस इंडिया का कमाया हुआ दोनों मिला करके कितना डिविडेंड आ रहा है इनका 1116. इंटरेस्ट कितना आ रहा है $4,000. सब मिला करके इनका कितना आ रहा है यहाँ पर 3,54,000. उसके बाद में स्टैंडर्ड डिडक्शन डिस्कस किए थे अपने एड हॉक 14,600 मिलेगा राहत. कितना हो गया 29,200. माइनस हो रहा है यहाँ पर, माइनस हो रहा है. तो कितना अब इनकम हो गया इनका 324,981. अब विथहोल्डिंग तो होगा ना सर, इंडिया तो अकेला टीडीएस वाला देश नहीं है ना, वहां पर भी तो विथहोल्डिंग टैक्सेस है. तो विथहोल्डिंग आपका उनका कितना हुआ है 55,178. सीन द पेमेंट्स फेडरल विथहोल्डिंग. और कितना बनता है उनका टैक्स ऊपर में एकदम देखिए 62,000 करके उनका टैक्स बनता है एज पर द स्लैब, राइट. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स है अपना नीचे में 1729, मिला करके 64,000 अराउंड कुछ आता है. 55,000 का ऑलरेडी टैक्स रिकवरी हो गया है बाय विथहोल्डिंग, राइट. तो कितना बचा है इनका $8,000 पेमेंट करना है इनको. ये 1722 है सर आपका नेट इन्वेस्टमेंट टैक्स. एक होता है जो आप एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट इनकम, डिविडेंड इनकम कमा रहे हैं, कैपिटल गेन्स का कमा रहे हैं, तो उसके ऊपर जोड़ करके कुछ प्लस माइनस करके एग्जेम्पशन करके एक तो कुछ आता है वो अमाउंट. और दूसरा होता है मेडिकेयर टैक्सेस. तो मेडिकेयर इनकम भी होता है W2 में मैं दिखाऊंगा. मेडिकेयर इनकम मतलब कि 3,000, ये कितना कमाया है ये 331, ये 331 इतना कमाया है. 331 के ऊपर में फेडरल टैक्स का विथहोल्डिंग, 331 के ऊपर में स्टेट टैक्स का विथहोल्डिंग, 331 के ऊपर में कि 317 के ऊपर में मेडिकेयर का टैक्स कितना बनता है. अलग अलग टैक्सेस है और कंप्यूटेशंस भी अलग है. इनफैक्ट 331 जरूरी नहीं है कि स्टेट का भी 331 होगा, हो सकता है उनका 317 हो.
लोगों का तो प्रोविजन टैक्स है ना, वो हेड में हाँ हाँ हाँ, वो पी टैक्स आप वैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स वो अलग चीज हो गया अपना, जैसे पी टैक्स। यहाँ पर ये दोनों मिला करके नेट इन्वेस्टमेंट टैक्स एंड मेडिकेयर टैक्सेस मिला करके आ रहे हैं। यू विल हैव टू मेक पेमेंट ऑफ दिस। तो अब कितना हो रहा है, $8,000 यू हैव टू पे व्हेन फॉर 2024 का कब है लास्ट डेट पेमेंट का? 15th अप्रैल। और टैक्स फाइलिंग कब तक है? 15th अप्रैल। इफ नॉट अप्लाइड फॉर एक्सटेंशन इन 4868, राइट। यहां पर नीचे में देखिए, व्हाट इज दिस? ये पेड प्रिपेयरर, मेरा नाम है, यहां पर कंपनी का नाम है, यहां पर पीटन लिखा हुआ है, PTIN, ये भरा हुआ नहीं है। पीटन इज अ, जैसे मैंने आपको बोला, पासपोर्ट का कॉपी दीजिए IRS को, विद इन 2 months नोटराइज और करके आपके पास एक पीटन लाइसेंस आ जाएगा। यू कैन स्टार्ट फाइलिंग दिस। यू डोंट नीड टू बी एन EA और अ CPA. You just need to apply for a PTIN. Once it comes, you can start filing these taxes. प्रोफेशनल टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है? नहीं, प्रिपेयरर PTIN हो गया आपका, टैक्स प्रिपेयरर आइडेंटिफिकेशन नंबर आपका ये हो गया, PTIN जो बोलते हैं। हाँ हाँ, टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर के लिए। हाँ, सेल्फ भी हो सकता है? सेल्फ भी है सर, आपको कोई कुछ नहीं आना, 18 साल के तो होना चाहिए मिनिमम, और पासपोर्ट को नोटराइज करवाइए, और IRS में ऑनलाइन फॉर्म होता है, 5 मिनट का चीज है, 2500 रुपया लेते हैं, $35 होता है, पेमेंट करते हैं, 2 महीने में रिप्लाई करते हैं, आपका लॉगिन ID पासवर्ड बनेगा। जैसे आएगा आपके पास में, IRS से लेटर भी आएगा आपके पास में, वो आपका नंबर हो गया। हर साल रिन्यू करना पड़ता है उसको 31 दिसंबर तक। दैट इज योर लाइसेंस टू मेक दीज फाइलिंग्स। यू डोंट नीड टू बी एन EA CPA, ये सब चीज नहीं है। ये है क्रेडेंशियल कि यू कैन रिप्रेजेंट दोज क्लाइंट्स in front of the IRS, Income Tax Department of the US, and you can do that in all 50 states. CPA का क्या है? CPA जैसे CA है, अकाउंटिंग में भी माहिर हो सकते हैं, टैक्स में भी हो सकते हैं, बट EA सिर्फ टैक्स में माहिर है, तो दे आर टैक्स स्पेशलिस्ट। CPAs जो होते हैं, दैट इज द करेंसी जो वहां पर सुनाई देता है, अच्छा CPA है क्या, CPA से काम कराना है। EAs लोग भी होते हैं, सिर्फ टैक्स स्पेशलिस्ट होते हैं। CPAs they can in different areas they can specialize. They are usually registered in 1 or 2 states because 70, 80, 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया का एनुअल पेमेंट करना पड़ता है। कौन से स्टेट में कौन से CPA बोर्ड के साथ आप रजिस्टर्ड हो, तो 50 स्टेट में कम से कम 1.5 करोड़ 2 करोड़ कौन रुपया देगा, तो 1-2 स्टेट में प्रैक्टिस करते हैं। So they can represent their clients in front of the IRS in only those states where they are legally registered with their board. But for EA, that's the highest credential given by the IRS, Internal Revenue Service, you can represent your clients in all the states. लेकिन ये सब तो अलग बात है, फाइलिंग जो करना हो तो सिर्फ PTIN के लिए करना है। PTIN आ गया, फाइलिंग करो आप, क्या इशू है उसमें? सेल्फ के लिए फाइल कर ही सकते हैं, और सेल्फ? हाँ जी, सेल्फ के लिए भी आप कर सकते हो, उसके लिए कोई क्रेडेंशियल नहीं। सेल्फ आप कर रहे हो तो PTIN भी तो चाहिए आपको, PTIN चाहिए सर। तो उसका फाइलिंग पोर्टल क्या होगा? हम लोग का जैसे फाइलिंग वैसे ही है सर, वहां पर उनका वैसे ही है। और ये फाइलिंग पोर्टल के अपने फाइलिंग पोर्टल में जाकर थोड़ी फाइलिंग करते हैं, अपने तो सॉफ्टवेयर से करते हैं। उनका सॉफ्टवेयर है सर, ड्रेक है आपका, अलग अलग सॉफ्टवेयर है। ड्रेक है पे पर यूज, एक रिटर्न का $15-20 चार्ज करते हैं, जितना रिटर्न आप खरीदना आप खरीद लो। क्लाइंट से आप एक पर्टिकुलर रिस्पेक्टेबल अमाउंट चार्ज करो एज पर द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द केस। अगर फॉरेन टैक्स क्रेडिट है, 1116 बोल रहे थे, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट है आपका, फॉर एग्जाम्पल सैलरी इनकम तो सबका होता है, डिविडेंड इनकम है आपका, इंटरेस्ट इनकम है, कैपिटल गेन्स है, तो अलग अलग शेड्यूल्स बढ़ रहे हैं, शेड्यूल B बढ़ रहा है, शेड्यूल C बढ़ रहा है, शेड्यूल E बढ़ रहा है, रेंटल इनकम है, फॉरेन इनकम है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स होएगा तो बढ़ते जाएगा वैसे लेना पड़ेगा। मल्टीपल यूजर के लिए अलग से लाइसेंस लेना। वी कैन डू दैट। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग हाउ इंडियन प्रॉपर्टी कैपिटल गेन्स आर टैक्स, ये तो सबसे पहले क्वेश्चन रहता है सर। फॉर एन NRI हु स्टेइंग इन द US, उनका इंडिया में कोई प्रॉपर्टी है तो वो रेंट पे दे, तो क्या इनकम टैक्स के अंदर में व्हाट आर दी ऑब्लिगेशंस, कि यहाँ पर अगर बेचे तो व्हाट आर दी ऑब्लिगेशंस, राइट। तो पहला तो चीज ये समझना है कि इंडिया में अगर प्रॉपर्टी है एंड इफ आई एम अ टैक्स रेसिडेंट इन द US, तो इंडिया में कई गली कुच्चा में मेरा प्रॉपर्टी है, उसमें 5,000 रुपया मेरा आ रहा है, तो कायदा से इफ आई एम अ टैक्स रेसिडेंट इन द US, ये मेरे को फाइल करना है कि इसका कोई थ्रेशोल्ड है? कोई थ्रेशोल्ड नहीं है। इवन इफ यू आर अर्निंग 1 रुपी इन ईयर इन इंडिया, यू विल हैव टू रिपोर्ट दैट मनी सेम उनका वो शेड्यूल में, शेड्यूल E जो आपका वहां पर रेंटल इनकम ऑन प्रॉपर्टी का है, तो इंडिया का भी कन्वर्ट करना पड़ता है। ऐसे तो उठा करके 5,000 रुपया डालेंगे नहीं, 5,000 डिवाइडेड बाय क्या होता है, देयर 2 डिफरेंट रेट्स। वन इज एवरेज रेट फॉर द एंटायर ईयर फॉर कन्वर्टिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस, एंड सेकेंड इज फॉर योर जो स्पॉट रेट होता है आपका एज ऑन 31 दिसंबर लास्ट डेट ऑफ द ईयर, वो आपका F बार्स और के लिए होता है, वो अपने आएंगे उसमें। तो ये सब जो इनकम कन्वर्जन है, वी विल यूज द एवरेज कन्वर्जन रेट जो साल का रहता है, 83-84 रुपीज है। तो वी नो दिस राइट,
यूएस में अपना इनकम रहेगा, इंडिया में अपने क्या करेंगे, वी ऑलरेडी नो दिस, 23 जुलाई के पहले का अगर अपना प्रॉपर्टी है, 23 जुलाई के पहले अगर बेच देते अपने, तो उसमें क्या है अपना, वी विल गेट द इंडेक्सेशन बेनिफिट एंड टैक्स स्लैब वाज 20%, ये तो पता है अपने को। 23 जुलाई के बाद में अगर बेचते हैं, 23 जुलाई या उसके बाद में इंडिया में बेचते हैं, एनआरआई का बात कर रहा हूं, रेसिडेंट का भी बात कर रहा हूं, और प्रॉपर्टी 23 जुलाई के पहले खरीदा हुआ है, तो रेसिडेंट लोग को क्या बेनिफिट मिलता है, इंडेक्सेशन मिलता है क्या नहीं मिलता है, कैन एनीवन टेल मी? इंडेक्सेशन मिलता है। नॉन रेसिडेंट को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा मार है ये। They will not get the indexation benefit for a property which was acquired before 23rd of July 2024, and if it has been sold after that. And there is a disparity with the tax treatment of particular capital gains vis-a-vis residents, Indian residents, tax resident और non resident. बोलने का मतलब क्या हुआ, 23 जुलाई या उसके बाद में अगर कोई भी प्रॉपर्टी नॉन रेसिडेंट इंडियन अगर बेचता है, इंडिया में प्रॉपर्टी है, तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा उनको। जैसे कुछ लोग हैं जो यूएस में हैं, उनके पेरेंट्स यहाँ थे, अब वो नहीं रहे, तो वो फ्लैट या वो मकान वो बेचना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो तो उनको गिफ्ट या इनहेरिटेंस में आया है। वो ठीक है, देखिए गिफ्ट दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, इनहेरिटेंस भी 56/10 जो अपना है उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग सब उनका वो सब रहेगा, वो सब भी कोई इशू नहीं है। आप बात समझिए, उनका वो आ गया विरासत में कि वो इनहेरिट कर ली जो भी चीज है, उसके बाद में उनको कभी तो बेचना है ना, वो बेचेंगे तो तभी भी वो यूएस में रेसिडेंट है, रह रहे हैं यूएस में, दे रेसिडेंट। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन विल बी कि सर नोएडा में अगर मैं कुछ बेच रहा हूं, मेरे पापा का फ्लैट था, मैं यूएस में रह रहा हूं, किसी को पता ही नहीं है, मैं रिपोर्ट ही नहीं करूंगा, ऐसा मत करिए। हो सकता है उनको पता नहीं हो, लेकिन इन लोगों का दोनों का एमओयू है, इंडियन गवर्नमेंट यूएस गवर्नमेंट का। यहां पर 26 में आपका आएगा, 50 लाख के ऊपर का आएगा, तो आपका पर्टिकुलर यहां पर 194 IA है, 1% का आपका उसमें टैक्स विथ होल्डिंग होएगा जो भी बायर है, तो ये सब यहां पर रिकॉर्ड रहेगा। दिस मे बी शेयर्ड देयर, एंड इफ यू आर अ टैक्स रेसिडेंट देयर, सिटीजन देयर और अ ग्रीन कार्ड होल्डर, यू नीड टू रिपोर्ट द कैपिटल गेन्स इन द यूएस, इंडिया में जो बेचे। और इंडिया में जो आपका है, सिंस आप एनआरआई हो, तो आपके लिए खास हमदर्दी नहीं है डिपार्टमेंट का, क्योंकि आप तो यहां पर रहते ही नहीं हो, आपका इनकम है, तो मैं अगर विथहोल्डिंग में पूरा पैसा नहीं निकालू तो मेरा तो पैसा छूट जाएगा। आप तो एनआरआई हो, व्हेन विल यू कम हियर इन इंडिया? सो यूजुअली आप देखोगे तो जो विथहोल्डिंग रेट्स है, टीडीएस रेट्स है फॉर एनआरआईज, दैट इज द टैक्स रेट ओनली यूजुअली। तो आप देखोगे यहां पर 12.5% या 20%। फॉर एग्जाम्पल 23 जुलाई या उसके बाद में प्रॉपर्टी बिकता है इंडिया में, तो 12.5% है अपना, तो 12.5% टीडीएस बन गया। और किसके ऊपर? कैपिटल गेन्स के ऊपर में कि सेल वैल्यू पे? हाँ सर, सेल वैल्यू पे। कैपिटल गेन कौन बनेगा आपका? लाखों करोड़ों आदमी लोग हैं, कुछ भी बना करके अपलोड कर देंगे, इतना किसके पास टाइम है फॉर विथहोल्डिंग्स एंड ऑल दैट? फॉर द पर्टिकुलर पर्सन, द बायर ऑफ द प्रॉपर्टी, व्हेन ही इज रेमिटिंग द फंड्स टू यू, राइट? सो ही हैज टू विथहोल्ड टैक्स 12.5%, दैट टीडीएस अलॉन्ग विथ कुछ भी सरचार्ज एक्सेट्रा जो भी चीज होता है वो करके दे विल विथहोल्ड एंड दे विल ऑब्टेन अ टैन। वो अपना टैन अगर उनके पास है नहीं तो टैन ऑब्टेन करेंगे एंड देन दे विल विथहोल्ड दैट। आप बोलते हैं कि सर मेरा तो कोई इनकम ही नहीं है, 1,00,000-1,50,000 रुपया है, इंटरेस्ट का आता है, मेरा 2 करोड़ का मकान है, बिक रहा है, 12.5% मतलब 25 लाख रुपया आप विथहोल्ड कर लियो, मेरा तो कैपिटल गेन ही नहीं बनता उतना, तो देन यू कैन अप्लाई फॉर अ लोअर टीडीएस डिडक्शन सर्टिफिकेट, जो आपका क्या होता है 197 सेक्शन 197। हाँ, इंडिया का मैं बोल रहा हूं, तो यहां पर यू विल अप्लाई फॉर अ नो डिडक्शन और लोअर टीडीएस डिडक्शन सर्टिफिकेट, फॉर्म 13। बाहर में भी होता है सर, सॉरी नहीं, बायर क्यों अप्लाई करेगा? सेलर विल अप्लाई। बायर को क्या पड़ा है सर? बायर तो काटेगा 12.5%। बायर को क्या हमदर्दी है क्या? ना सर, बायर को कोई आइडिया भी है क्या? आप बायर हो सर, आप भागेंगे थोड़ी, उनके लिए इतना मेहनत थोड़ी करेंगे। दे विल हैव टू अप्लाई इंडिया में। हाँ, एंड यहाँ पर फॉर्म 13 फाइल करके वो अप्लाई करेंगे, उनके पास में सर्टिफिकेट आएगा नो टीडीएस डिडक्शन और लोअर टीडीएस डिडक्शन टैक्स सर्टिफिकेट। कंप्यूटेशन बनाना पड़ता है, टैक्स रिसीट्स जो भी एक्सेट्रा वो सब आपको प्रॉपर्टी का डिटेल्स देना पड़ता है। यू हैव टू अप्लाई हियर इन इंडिया सर, फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म होता है। तो सेल के ऊपर में वही तो बोल रहा हूँ, अगर कोई इनकम किया हुआ क्या चीज का? लिटिगेशन या ना वो सब नहीं, सेल प्रोसीड्स। तो सेल प्रोसीड्स पे सर उतना आपको वो हो जाएगा। आप बोलेंगे नहीं सर मेरे को कम रेट पे करना है, तब यू विल हैव टू प्रोवाइड इट टू द बायर, अदरवाइज बायर के ऊपर बहुत पेनल्टीज है सर। क्या पेनल्टी है? 271C का है, क्या है? जितना टीडीएस काटेंगे उतना का पेनल्टी लग जाएगा अगला के ऊपर। इम्प्रिजनमेंट है 276 का, बी का,
2 साल 3 साल से 7 साल तक, इंटरेस्ट है 1.5% का और डिसअलाउंस है 40 का अगर बिजनेस का है, कौन इतना मार खाएगा? तो इट्स वेरी क्रूशियल, बट योर फंड इज ऑल्सो गेटिंग ब्लॉक्ड। ये यूएस में भी टैक्स होएगा, इंडिया में भी टैक्स होएगा, इसका क्रेडिट तो उसको वहां वहां पर मिलेगा आपको, क्यों नहीं मिलेगा? 111C 1116 फाइल करके फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलेगा अपने को। सो यू कैन गो थ्रू दी स्लाइड्स, ये अपने सब डिस्कस कर लिए। ये यूएस का टैक्स विद होल्डिंग है। यूएस का टैक्स विद होल्डिंग में क्या होता है अपना 15% टैक्स विद होल्डिंग। क्या होता है अगर यूएस में, यूएस का टैक्स बात कर रहे हैं, $300,000 के अंदर का अगर सेल वैल्यू हो, मतलब 2.5 करोड़ छोटा प्रॉपर्टी है, 2 करोड़ 60 लाख का और रेसिडेंशियल हो, तो 0% विद होल्डिंग फॉर एनआरआईज। आप यूएस में नहीं रहते हो सर, यू कम बैक इनटू इंडिया बट यू लेफ्ट योर प्रॉपर्टी देयर, तो विद होल्डिंग क्या रहेगा वहां पर? नो विद होल्डिंग इन दिस केस। बट इफ 300,000 से 1 मिलियन के बीच का है तो 10% विद होल्डिंग बाय द यूएस रेसिडेंट बायर। यू आर द एनआरआई मींस यू आर द नॉन रेसिडेंट यूएस नॉन रेसिडेंट सेलर, राइट? और 15% है अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी हो तो डायरेक्ट 15% ही है, उसका कोई देखना नहीं है। और अगर 1 मिलियन के ऊपर का रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है तब, अब जैसे सर वाज आस्किंग कि वहां पर भी कुछ राहत मिलता है क्या टीडीएस और का कि विद होल्डिंग का जो भी है, तो आप बोलेंगे सर आई तो डोंट स्टे देयर, आई डोंट हैव एनी अदर इनकम, सो यू कैन स्टिल अप्लाई फॉर अ लोअर विद होल्डिंग टैक्स रेट देयर। वहां पर वो कहां से अप्लाई होएगा? वो होएगा 8288B। ये आपका क्या होएगा? प्रॉपर्टी बेचने से पहले आप वहां के यूएस आईआरएस में आप अप्लाई करो, आप बोलो कि सर मेरा तो कोई भी इसमें इनकम बनने वाला है नहीं, मेरा और कोई इनकम है नहीं, सो काइंडली प्लीज अलाउ 0% और वेरी मिनिमल। अच्छा, शेयर्स, आई एम एन एनआरआई, मैं यूएस में रहता हूं और इंडिया में मेरा म्यूचुअल फंड्स है, मेरा इंडिया में ईटीएफ्स है, मेरे इंडिया में ये सब जो भी है, तो इसमें अगर मैं यहां पर शेयर ये एसआईपीस करता हूं, म्यूचुअल फंड्स करता हूं एक्सेट्रा एंड ऑल दैट, तो कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है? यर सो देखिए इसमें प्रॉब्लम है आपका। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ पीफिक, आई विल शो यू, पैसिव फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनी। मतलब क्या हुआ? एनी म्यूचुअल फंड हाउस मोटा मोटी पीफिक होएगा। मोटा मोटी पीफिक का मतलब क्या हुआ? पीफिक क्या होता है? पैसिव फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनी। ये यूएस के लॉ के अंदर में है कि वो म्यूचुअल फंड का 75% ऑफ द म्यूचुअल फंड का कंपनी का इनकम पैसिव सोर्सेज से ही आ रहा है ना, राइट? इन्वेस्टमेंट से आ रहा है। एसेट टेस्ट मोर देन 50, ये डू एटलीस्ट 50% ऑफ द कंपनीज एसेट जनरेट पैसिव इनकम, ये सब है। तो बोलने का मतलब क्या हुआ? अगर आप यूएस में टैक्स रेसिडेंट हो और इंडिया में म्यूचुअल फंड्स में अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके बेच रहे हो, खरीद रहे हो, तो बहुत बड़ा आपका अप टू 50% टैक्स यूएस में लग सकता है। वेरी फ्यू पीपल नो दिस। और इसके लिए अलग फॉर्म लगता है 8621, वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म। तो क्या नसीहत देते हैं एनआरआईज लोग को कि सर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करिए, डीमैट को पीएमएस बनाइए। यहां पर देखिए, इन्वेस्टमेंट्स दैट अवॉइड पीफिक क्लासिफिकेशन, डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स इन द इंडियन मार्केट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज पीएमएस, डायरेक्ट बॉन्ड्स डिबेंचर्स खरीदिए। क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड ऊपर देखिए, कॉमन पीफिक इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स अगर आप इक्विटी और डेट का करते हो, ईटीएफ्स करते हो इन इंडिया फॉर एन एनआरआई हु इज इन द यूएस, यू मे हैव टू पे अप टू 50% टैक्स। मतलब क्या? वो अनरियलाइज गेन्स पे होता है कि फेयर मार्केट वैल्यू क्या है सर लास्ट दिन पे और कब खरीदे थे, वो उसके ऊपर में पूरा टैक्स ले लेंगे। अलग अलग कैलकुलेशंस होते हैं। तो ये अगर आप इसमें नहीं करते हो, थ्रेशोल्ड्स अगर यहां पर मैच नहीं होते, तो इसमें आपके ऊपर में पेनल्टी आ सकता है। तो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप अपने जो डीमैट अकाउंट है उसको आप चेंज करो। डीमैट अकाउंट को आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के अकाउंट आप बनाओ इसको। अच्छा, इसमें ये देखिए, ये आपके नॉर्मल जो ये कैपिटल गेन्स जो शेयर्स के हैं, आपके जो शेयर्स के इंडिया का तो अपने को पता है ना सर, क्या है? 1 साल तक का होल्डिंग है। अगर उसके अंदर का है तो शॉर्ट टर्म है, उसके ऊपर का है तो लॉन्ग टर्म है। वी नो दिस। यहां पर क्या है सर? कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट कुछ मिलता है? 112A का कहां इंडेक्सेशन कुछ बेनिफिट मिलता है? 12.5% फ्लैट रेट और 1.5 लाख, ये 1.25 लाख का अपना एग्जेम्पशन है। वी नो ऑल दिस, राइट? अब इसमें जो आपका है टीडीएस ऑन एनआरआई ऑन कैपिटल गेन्स, इस पे आप डीटीडब्ल्यू का बेनिफिट ले सकते हो। देखिए ये टीडीएस है, टीडीएस एट सोर्स है फॉर डिफरेंट ये सब टैक्स रेट्स है सर विच आई एम टॉकिंग अबाउट। दीज आर टीडीएसएस फॉर एनआरआईज जो आपके 195 में जो होते हैं। 195 का भी मैं डाला हूं इसमें। लिस्टेड इक्विटी शेयर्स है, 112A है जो अपना, वो कितना अभी 12.5% हो गया ना,
पहले भी कितना था अपना पहले 10% था, अभी 12.5% हो गया, राइट। ऐसे कर करके कौन कौन काटेंगे साइड में, ब्रोकर काटेगा, फंड मैनेजमेंट हाउस काटेगा, ऐसे ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब दिया हुआ है, रेट्स एक्सेट्रा एंड ऑल, यू कैन गो थ्रू दिस। अब इसमें क्या, इन्वेस्ट थ्रू NRE PIS अकाउंट्स, जो आपके पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम, जो आपके डीमैट को आप चेंज करो एंड आप इसको डायरेक्ट या तो आप इक्विटी में बेचो, आप म्यूचुअल फंड्स, SIP ये सब चीज मत करो, ये सब में आपका इश्यूज होएगा, पीफेक आपका अप्लाई होगा। ओके, पेरेंट्स, सर हैड अ क्वेश्चन कि पेरेंट्स का गिफ्टिंग, सर इंडिया में पेरेंट्स है, ओल्ड है, यूएस में मेरा एनवीडिया का स्टॉक है, एप्पल का है, एंड दे ब्लू चिप्स, दे वेरी गुड, मैं फ्यूचर सिक्योर करने के लिए गिफ्ट करना चाहता हूं इंडिया में, तो सर इंडिया में पेरेंट्स को गिफ्ट करूं तो इंडिया टैक्सेस का तो पता अपने को, पेरेंट है, चाइल्ड है, पेरेंट को कर रहा है, तो क्या कोई इशू है? 56(2)(10 तो कोई इशू नहीं है सर, गिफ्ट डीड बना लो एक्सेट्रा एंड ऑल। यूएस में क्या है सर, यूएस में अगर आप गिफ्ट करते हो पेरेंट को तो क्या होगा, यूएस में अगर आप गिफ्ट करते हो तो सबसे पहले ये देखना है कि पेरेंट्स का जो ब्रोकरेज अकाउंट है दैट सपोर्ट्स फॉरेन स्टॉक होल्डिंग्स, राइट, और गिफ्ट डीड बने, फेमा का जो अपना, ठीक है, अबव 19,000 अगर यूएस डॉलर से ऊपर का गिफ्ट करते हो आप, तो एक तो फॉर्म 709 आता है, यू हैव टू फाइल दैट। और फॉर नॉन यूएस पर्सन, अगर आप यूएस में भी नॉन रेसिडेंट हो और इंडिया में आप NRI हो, तो वो गिफ्ट आपका $60,000 के ऊपर में इतना टैक्स हो सकता है। बट इन इंडिया क्या है, इंडिया में जो पेरेंट्स रिसीव कर रही है वो टैक्स फ्री है, बट वो बेच देते हैं उसको, तो कैपिटल गेन आएगा तो किनके फाइल में आएगा, पेरेंट्स के फाइल में आएगा ना, और डिविडेंड इनकम आएगा उससे तो क्या है, पेरेंट्स के फाइल पे आएगा, राइट। अच्छा, टैक्सेशन ऑफ कैश गिफ्ट्स फ्रॉम NRIs टू रिलेटिव्स इन इंडिया। अच्छा, ये क्या है, फ्रॉम NRI टू रिलेटिव, सेम चीज है, बाहर में लड़का पढ़ता है, वहां पर क्या काम करता है, और यहाँ पर ओल्ड पेरेंट्स से उनको गिफ्ट दे रहा है यूएस से, तो क्या है, कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं, अभी तो डिस्कस किया अपने, 2 लाख के ऊपर का कैश गिफ्ट दे सकते हैं, नहीं दे सकते, ये सब पता है अपने को, राइट। अच्छा, पेरेंट्स दे रही है यूएस में, बहुत बहुत जन लोग देते हैं, यहां पर प्रॉपर्टी बेच दिए, 2 करोड़ का रुपया आ गया, रिपैट्रिएट करना है, तो रिपैट्रिएट करना है कि एजुकेशन के लिए देना है, लोन नहीं लिए, खुद का पैसा है, तो गिफ्ट कर रही है, तो गिफ्ट कर सकते हैं, क्या है इसमें, यूएस में टैक्स लगेगा इतना मोटा अमाउंट का, वो अपने देखते हैं। कोई भी गिफ्ट अगर यहाँ पर पेरेंट्स कर रही है, अगर $100,000 के नीचे का है, $100,000 कितना हो गया अपना, 85 लाख हो गया ना, अराउंड 87 लाख है, उसके अंदर का करते हैं तो रिपोर्ट भी नहीं करना है, उसके ऊपर का करते हैं तो रिपोर्ट करना होगा, सिर्फ रिपोर्ट, टैक्स नहीं होगा यूएस में, सो यू विल हैव टू रिपोर्ट इट इन फॉर्म 3520, और रिपोर्ट अगर करेंगे तो जितना $5,000 के ऊपर का अगर मल्टीपल गिफ्ट मिला है तो वो सब अलग अलग रिपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन 100,000 के नीचे का है तो यू डोंट इवन नीड टू रिपोर्ट, देयर इज नो टैक्स ऑन दैट। 15 CA/CB वी ऑलरेडी नो, राइट, फॉर एनी रेमिटेंस फ्रॉम ईयर, जो भी कोई भी टैक्सेबल है तो TDS देखते हैं अपने कटा है कि नहीं है एक्सेट्रा, और 5 लाख के ऊपर का अगर रेमिटेंस है तो CA का सर्टिफिकेट इन 15 CB पार्ट C अपना लगता है, राइट, 15 CA का पार्ट C में अपना लगता है, तो वी नीड टू टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। ये सब अपने को पता है, TCS में जो चेंजेस आए हैं बजट में, ये तो जो एजुकेशन में था 7 लाख के ऊपर था तो आपका 0.5% लग रहा था, अभी नील हो गया आपका। ये लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर कोई भी पेरेंट यहाँ पर लोन से वहां पर पढ़ाई के लिए पैसा रेमिटेंस करते थे तो क्या था, 7 लाख तक कुछ नहीं था, उसके बाद 5% था, अभी क्या हो गया, 10 लाख हो गया, राइट। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि H1B में मैं था, 5 साल खत्म हो गया, एक्सटेंशन नहीं मिला, इंडिया आ गया, आई हैव गॉट माय कॉन्टैक्ट्स, आई हैव गॉट माय कंपनीज वहां पर, लेकिन आई एम नॉट ऑन पेरोल, कैन आई वर्क फॉर अ यूएस कंपनी सिटिंग हियर इन इंडिया, अकाउंटिंग कर सकता हूं, आउटसोर्सिंग कर सकता हूं, एडवाइजरी दे सकता हूं, योगा क्लासेस दे सकता हूं, आई एम रिसीविंग इन डॉलर्स, तो काम हो गया ना सर, यहाँ पर अपने प्रोफेशनल कुछ सर्विसेज दे रहे हैं, कैन वी डू दैट, लीगली परमिसिबल है यूएस में, इंडिया में क्या क्या टैक्स लॉज है एक्सेट्रा, वो चीज अपने समझते हैं, लीगली यू कैन डू दैट। अगर H1B आपका एक्सपायर हो गया है, 5 years एक्सटेंशन नहीं हुआ है, देन आप यहां पर whatever money you are earning in the US, you have to get it repatriated here in India within 9 months, right? और अगर आपका यहां पर 180 days जनरल है, 9 months अंडर स्पेसिफाइड अरेंजमेंट है, मेंटेन द डॉक्यूमेंटेशन, FIRCs, फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट्स, जो बाहर से डॉलर्स आ रही है वो बैंक देते हैं ना, FIRC, BRCs फॉर एक्सपोर्ट्स एंड ऑल एक्सेट्रा, तो वो आपको मेंटेन करना पड़ता है। यूज प्लेटफॉर्म्स लाइक स्काइडो, वाइज फॉर कंप्लायंट यूएस ट्रांसफर्स। अच्छा, इंडिया में क्या टैक्स प्लानिंग करेंगे, 44 ADA, 50 लाख के अंदर का, या तो 75 लाख जहां पर 5% के मतलब कि ऊपर से मेरा कोई कैश रिसीट्स नहीं है, तो 75 लाख तक का मैं फॉरेन रिसीट्स ले सकता हूं, उसमें क्या है 50% टैक्स होगा, राइट, 50% टैक्सेबल इनकम होगा, उसके ऊपर 8% टैक्स होगा, राइट,
तो ये अपने कर सकते हैं सोल प्रोप्राइटर के हिसाब से यहाँ पर। और यूएस में टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। डू वी हैव टू पे टैक्स इन यूएस इफ यू आर सिटिंग हियर इन इंडिया एंड अर्निंग इनकम? यूएस में करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? देखते हैं अपने। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब लेना पड़ेगा? 20 लाख के ऊपर सर्विस अगर कर रहे हैं, राइट? तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिए और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है तो अंडर एलयूटी बॉन्ड करेंगे, राइट? और इनकम टैक्स में 44 एडीए का अपने बेनिफिट लेंगे। यूएस में क्या होएगा? अपने सबमिट करते हैं फॉर्म W8 बेन और ये बोलते हैं कि सर टू द यूएस कंपनी टू सर्टिफाई फॉरेन स्टेटस अवॉइड 30। हम बोलते हैं कि सर मैं यूएस में रेसिडेंट ही नहीं हूं, मैं यूएस के बाहर में रेसिडेंट, मतलब कि यूएस का रेसिडेंट रहता ही नहीं हूं मैं यहाँ पर, H1B में भी नहीं हूं, F1 में भी नहीं हूं, ग्रीन कार्ड भी नहीं है, सिटीजन भी नहीं हूं, वहां पर मेरा बैंक अकाउंट में पैसा भी नहीं आ रहा है, मेरा बैंक अकाउंट में इंडिया में आ रहा है डायरेक्ट। तो वो स्थिति में मैं फॉर्म W8 बेन जो आपका एक टैक्स ट्रीटी का फॉर्म है कि नो विथहोल्डिंग टैक्स का, वहां पर आईआरएस में आप अप्लाई करो, सर्टिफाई योर फॉरेन स्टेटस किया, यू आर एन इंडियन टैक्स रेसिडेंट, अवॉइड योर 30% विथहोल्डिंग। और तभी भी अगर काट लेता सामने वाला आदमी, बोलता नहीं हमको ये सब आपका टाइम से आया नहीं फॉर्म W8 बेन W8 बेन, तो अगर काट भी लेते हैं तभी भी व्हाट, फाइल योर 1040 NR नॉन रेसिडेंट टैक्स रिटर्न एंड गेट दी रिफंड। वी कैन डू दैट। तो दिस, और ये सोल प्रोप्राइटरशिप इज वेरी एनकरेज, सोल प्रोप्राइटरशिप के हिसाब से आप करिए। एफ बार रिपोर्टिंग, हाँ सर, ये यूट्यूबर लोग हैं, अगर यहाँ से यूएस में सर्विस दे रहे हैं तो उसके आपका जब तक यूएस में बैंक अकाउंट में वो दे रहे नहीं है, यूएस का कोई भी 1099, कोई भी 10, जैसे अपना यहाँ पे क्या होता है फॉर्म 16A क्या होता है, कुछ भी कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम हम लोग कमाए तो अगला काट लिया 1-2% जो भी चीज है, तो हम लोग क्या देते हैं 16A देते हैं। वहां पर वैसे 1099 करके होता है, वो भी मैं डाला हूं स्लाइड में। वो क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम, गिफ्ट, कुछ भी, मतलब कुछ भी ऐसा और कमाए, विंडफॉल गेन्स है कि आपका कोई भी और अन्य सैलरी के अन्य इनकम है तो 1099 का वो देते हैं। वो सब कुछ नहीं दिए वो आपको, आप एक फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से काम कर रहे हो, तो फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर को राहत है ये चीज में कि आपको एज अ फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर ना तो W2 मिलेगा ना तो 1099 मिलेगा। आपके पास 1099 W2 क्या है, 31 जनवरी तक ये सब कंपनीज को आईआरएस के पोर्टल में जमा करना पड़ता है कि भाई मेरे कितने ये एम्प्लॉयज लोग हैं, उनका कितना कितना इनकम हुआ है, सब W2। और 1099 कितने कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स है किनको मैं इनकम दिया हूं, उसे सब उनको खुद अपलोड करना पड़ता है। आपको कुछ मिला ही नहीं है क्योंकि आप फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर हो। फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर के लिए कोई 1099 बंदिश नहीं है। So you may not have to report any income there in the US. लेकिन अगला अगर तभी भी withholding काट लिया, if you are unable to provide W8 ben कि do not withhold 30% tax on my income which is not accruing or not being received in the US, तो आप उसके ऊपर में US में टैक्स फाइलिंग का क्या आपको करने का दरकार नहीं है उसमें। F bar is very important, ये आप समझ लीजिए। this does not go to the, हाँ जी, इंडियन पर्सपेक्टिव से 44 ADA है और जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, सोल प्रोप्राइटरशिप का है अपना, वो तो अभी अपने डिस्कस किए। ये स्लाइड्स आपको मिलेगा, कोई भी क्वेरी रहेगा आप पूछ लीजिए, वो कोई इशू नहीं है। आई जस्ट टेक 10 more minutes मैम। आई थिंक आई डोंट नो अगर मेरा एक्सीड हो गया कि नहीं है, काफी स्लाइड्स है, बट आई जस्ट टेक 10 more minutes। नहीं, आप लोग को समझ में आ रहा है ना, दैट्स द इंटेंशन। अच्छा, एफ बार क्या है? एफ बार जो आपका है जैसे 1040 है, जैसे ITR 1, 2, 3, 4 ये सब अपना है, वैसे वहां पर 1040, 1120 अलग अलग ऐसे करके। एफ बार क्या होता है? फॉरेन बैंक अकाउंट रिपोर्टिंग। मतलब क्या हुआ, यूएस के लिए आप इंडिया में अगर कोई भी बैंक अकाउंट है तो उनके लिए क्या हो गया, खतरा का चीज हो गया मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कि अच्छा बाहर में इनका बैंक अकाउंट है, रेमिटेंसेज जाता है, तो इसके ऊपर में भी जानकारी रख के रखते हैं। एग्जैक्टली, फाटका की तरह। तो फाटका भी अभी अपने देखेंगे फॉर्म 8938, दैट्स आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। और पेनल्टीज $10,000, $50,000 ऐसे करके सबको देना पड़ेगा। मैं बताता हूं, डोरमेंट भी, वेरी गुड क्वेश्चन, कि डोरमेंट बैंक अकाउंट को भी रिपोर्ट करना पड़ेगा क्या अपने को? वो भी करना पड़ेगा जो कायदा से है, जो अपने देखते हैं। तो एफ बार क्या है, बोलता है सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड एफ बार क्या बोलता है। फाइनेंशियल एनफोर्समेंट क्राइम एनफोर्समेंट नेटवर्क, ये एक अलग नेटवर्क है, मनी लॉन्ड्रिंग का अलग एक नेटवर्क। दिस इज नॉट द आईआरएस। इनको आप रिपोर्ट करो अगर इंडिया में या तो विदेश में, आउटसाइड द यूएस, इफ यू होल्ड एनी बैंक अकाउंट, पीपीएफ अकाउंट, डीमैट, सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड्स, LIC with a cash surrender value, any financial asset at any point in time in 2024 calendar year, $10,000 मतलब 8,70,000 INR के ऊपर में मैक्सिमम बैलेंस, सेम डे में 25 लाख ट्रांसफर किए, 25 निकाल लिए, तभी भी 25 काउंट होगा आपका।
सब बैंक अकाउंट से, सब डीमैट से, सब फाइनेंशियल एसेट से, मैक्सिमम बैलेंस सबका पूरे साल में वो मिला करके 8,70,000 मतलब $10,000 से ज्यादा अगर होता है तो ये फाइनेंशियल क्राइम एनफोर्समेंट नेटवर्क FinCEN के नेटवर्क पे एक फॉर्म होता है, फॉरेन बैंक अकाउंट रिपोर्टिंग FinCEN 114। ये क्या होता है? ये फॉर्म होता है, कुछ नहीं है ये फॉर्म। HDFC बैंक में मैक्सिमम बैलेंस कन्वर्ट करके यूएस में $946 हुआ है मेरा। अच्छा, बैंक का एड्रेस कहां पर है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, फॉरेन पोस्टल कोड क्या है, सिटी क्या है, बैंक अकाउंट है क्या, डीमैट है क्या, सिक्योरिटीज है, ये रिपोर्ट करना पड़ता है। ये रिपोर्ट अगर नहीं करते हैं, ये कब तक करना है? 15 अप्रैल तक। तभी भी ऑटोमेटिक एक्सटेंशन इज देयर अप टू 15 अक्टूबर। हाँ जी, बैंक वाला नहीं सर, अपने को हाथ से फाइल करना है। ये अपने पास में बैंक स्टेटमेंट्स अपने को निकालना पड़ता है कि 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक का पूरा कैलेंडर ईयर का बैंक में, फिर अपने मैक्स करके एक्सेल शीट में देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू आपका क्लोजिंग बैलेंस का कौन सा दिन का है, उसको हाईलाइट करते हैं, वो देखते हैं अपने, वो रिपोर्ट करते हैं अपने। $10,000 अगर वो क्रॉस हो जाता है, कितना टाइम है आप मेरे को ये बता देना। बस वही है। ठीक ठीक, आप मेरे को बता देना। 5-10 मिनट्स अभी है, 5 मिनट्स, ठीक है। तो ये आपका एफ बार है, जैसे सर बोले फाटका, इसका क्या वायलेशन है? $10,000। मेरे पास 25 बैंक अकाउंट है, मैं जानता ही नहीं हूँ। 99% NRI को पता ही नहीं है, फाइल भी करना पड़ता है। और एक बैंक अकाउंट का $10,000 का पेनल्टी है, मतलब कि $250,000 का आपका फाइन लग सकता है क्या अभी भी अगर रिपोर्ट नहीं करते हो आप तो। फाटका, जैसे सर ने बोला 8938, फाटका क्या होता है? इट इज फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट के अंदर में ये आपको क्या करना पड़ता है, इसका लिमिट्स रहता है। ये क्या क्या रिपोर्ट करना पड़ता है अपने को, लेट अस सी। इसमें जितना एफ बार में है वो तो करना ही है, प्लस उसके बाद में आपका कोई भी अगर फॉरेन पार्टनरशिप में स्टेक है, कोई और ऐसा टाइप का फाइनेंशियल एसेट है जो एफ बार में कवर्ड नहीं हो, कोई फॉरेन कंपनी में ओनरशिप है, वो सब चीज भी आपको यहां पर रिपोर्ट करना है। इसका डिफरेंट थ्रेशोल्ड्स है। अगर आप सिंगल फाइल कर रहे हो तो मात्र से $50,000 का और 75,000 का थ्रेशोल्ड है। मतलब क्या हुआ, सेम चीज, मैक्सिमम बैलेंस थ्रू आउट द ईयर मिला करके अगर आप सिंगल हो तो $50,000 एज ऑन 31st December एंड $75,000 एनी टाइम ऑफ द ईयर। अगर ये आप एक्सीड कर लेते हो तो देन यू विल हैव टू फाइल 8938, ऐसा लगता है आपका 8938। ये देखिए इसमें क्या है, मैंने चेक किया है, डिपॉजिट साइड में क्या डाला हूं, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का एड्रेस, मैक्सिमम बैलेंस, ये कितना रेट का कन्वर्जन हुआ, ये सब डालते हैं अपने, तो ये आपका 8938 होता है। सो दिस नीड्स टू बी फाइल्ड। ये फाइल नहीं करेंगे तो क्या होएगा, वही सेम 10,000 एंड अप टू 50,000 जाता है। ये सब यू गाइस कैन गो थ्रू दिस। ये सेक्शन 195 का जो अपना है विथहोल्डिंग्स, ये मैं डाला हूं यहाँ पर। DTAA का है, यू गाइस कैन गो थ्रू दिस। वैसे आपने डिस्कस कर लिए, फॉर्म 67 होता है। दीज आर कंसेशनल टैक्स रेट्स DTAA में। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का तो वैसे ही अपने इंडिया में कम है, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल वी विल टेक दैट टैक्स रेट एंड वी विल आस्क द रेमिटर टू टेक दैट एंड टू डिडक्ट विथहोल्ड द टैक्स रेट्स हियर इन इंडिया। TRC लेना पड़ता अपने को कोई भी DTAA का बेनिफिट लेने से पहले। कोई भी बच्चे अगर बाहर में पढ़ रहे हैं तो क्या था, अपने अभी देखे थे ना, बच्चे अगर बाहर में पढ़ रहे हैं तो 7 लाख रुपया से ऊपर में, अगर पहले क्या था कि 7 लाख रुपया से ऊपर में 5% क्या था ना वो विथहोल्डिंग और जो था उनका TCS का, तो अभी क्या हो गया इनका नया में, इनका नो TCS विल बी कलेक्टेड ऑन रेमिटेंसेस फॉर एजुकेशनल पर्पसेस थ्रू लोन। लेकिन क्या है 2024-25 का बात करते हैं तो ये ऑलरेडी उनका मानिए कि डिडक्ट हुआ है। ये हाउ पेरेंट्स कैन क्लेम TCS क्रेडिट फॉर चिल्ड्रन स्टडिंग अब्रॉड, ये पेरेंट के फाइल में कैसे ट्रांसफर करना है, ये तो चाइल्ड के फाइल में आएगा TCS का, तो पेरेंट के फाइल में ट्रांसफर कर सकती है। यू नीड टू फाइल अ पर्टिकुलर फॉर्म और ये आप फाइल कर सकते हो, और जितना TCS आपका विथहोल्ड हुआ है बैंक किया है वो पेरेंट के फाइल में आकर के ही कैन यूज इट अगेंस्ट एनी इनकम। ये रेंट के लिए है आपका, ये सेम चीज है। अब जो आदमी यहाँ पर जो आपका टेनेंट है, आप लैंडलॉर्ड हो, बाहर में रहते हो, तो उसके ऊपर में कितना जिम्मेवारी आ जाता है भाई, कि आपका जितना 30% अगर आपका जो भी है ही विल हैव टू डिडक्ट ये TDS ऑन दैट, टैन लेना पड़ेगा एक्सेट्रा एंड ऑल। सो यू गाइस कैन गो थ्रू दिस 30% प्लस सरचार्ज एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, अगर कोई NRI है, उनके फादर एक्सपायर करते हैं और अपने नॉमिनी में अपने लड़के का नाम डाल दिया उन्होंने, उनके अकाउंट में से 1.5-2 करोड़ रुपए का शेयर है इंडिया में,
तो वो डीमैट उनके लड़के के नाम पे सर देखिए यूएस में इनहेरिटेंस टैक्स बोल करके भी एक चीज होता है, बहुत खतरनाक चीज, उसका अलग अलग थ्रेशोल्ड्स भी होते हैं। कुछ भी इनहेरिटेंस अगर हो रहा है यूएस के प्रॉपर्टी का, इंडिया का प्रॉपर्टी का, इंडिया में वो इंडिया में, हाँ। यहाँ का शेयर सब चूंकि वो है यहाँ पर तो सिंपल चीज है, लीगल एयर सर्टिफिकेट निकालेंगे अपने और जिस साल पास मेरा हो, क्वेश्चन है सर कि जैसे वो अगर एक्सपायर हो गए और उनके नॉमिनेशन में लड़के का नाम है तो एनआरओ के साथ में कोई अपने को डिमेट खोल के उसमें ट्रांसफर हो जाएगा, पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। उस पे कोई इम्प्लीकेशन तो नहीं है until उस पे कैसे होएगा, उस पे कुछ इम्प्लीकेशन नहीं होगा। वो आप समझ लीजिए गिफ्ट हो गया, $100,000 के ऊपर का अगर हो गया इनहेरिटेंस का गिफ्ट तो 3520 जो फाइल करना है वो इंडियन एसेट्स पे, लेकिन यूएस एसेट्स पे अगर आप कुछ गिफ्टिंग कर रहे हो तो उसका अलग थ्रेशोल्ड है, इंडिया में वो आप कर सकते हो। यहाँ पर भी फटका आ जाएगा, हाँ जी, फटका में तो ये भी आएगा, फटका में आएगा, बहुत अच्छा चीज बोली हो, एफ बार में भी आएगा। इनका तो अचानक से 2 करोड़ के है तो 8,70,000 का बात कर रही है, तो उनका तो बैंक अकाउंट बहुत बढ़ गया, तो उनको फटका में रिपोर्टिंग करना है ना, टैक्स नहीं है तो इन्फॉर्मेशन रिटर्न है। हाँ उनके शेयर्स आए हैं, इसका वैल्यू इतना है। वो भी डालना होगा सर, 8938 फाटका में आएगा सर वो। सर यूएस सिटीजन का इंडियन रिमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसका क्या इनहेरिटेंस का इम्प्लीकेशन है? मतलब कि यूएस रेजिडेंट का इंडियन रिमूवेबल प्रॉपर्टी, यूएस रेसिडेंट का इंडियन इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो इंडिया में इनहेरिटेंस का तो कुछ है नहीं, पीरियड ऑफ होल्डिंग कंटिन्यू होएगा, जब वो बेचेंगे तब कैपिटल गेन होएगा उनका फाइल में। यूएस में जो उनका इनहेरिटेंस का यूएस रिलेटेड प्रॉपर्टी पे इनहेरिटेंस है, अलग अलग स्लैब्स है उसमें। दैट इज ओनली फॉर यूएस। हाँ, गिफ्टिंग का वहां पर गिफ्ट टैक्स बोल करके एक होता है, तो उसमें क्या है कि 1.3 या 1.5 मिलियन तक का गिफ्ट का लाइफ टाइम का गिफ्ट तक का आपके ऊपर में छूट है कि आप अगर गिफ्ट उतना देते हो किन्हीं को 1.3 1.5 मिलियन तक, तो उसके ऊपर में गिफ्ट टैक्स नहीं लगेगा। नहीं तो गिफ्ट टैक्स का अलग आपका फाइलिंग है और गिफ्ट टैक्स इसमें माना नहीं जाता, इनकम टैक्स से अलग। सॉलिड प्रॉपर्टीज का बिल से काम होता है ना। हाँ जी, तो वो जैसे यूएस रेजिडेंट है उसका इंडिया में बिल से वो हाँ तो उसमें there is no implication। नहीं, उसमें कोई इम्प्लीकेशन नहीं। इंडिया में देखिए वो जब पास अवे करेंगी तो पहला तो चीज है कि आप उनसे संपर्क में हो, वही बहुत बड़ा बात है। तो सब हो गया समझ। वो चलिए संपर्क में पता चल जाए वो पास हो गया तो यहाँ पर म्यूटेशन करके आपके नाम पे और आ जाएगा, प्लस आपको जो भी यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा पर कट्टा का जो आपका है 5 लाख का, जो भी 4 लाख यहाँ पर जो भी है वो अलग चीज है। वहां पर जो आपका है उनका जब फाइलिंग होएगा तो उनका फाइलिंग में वो विल के हिसाब से वो एक गिफ्ट दी है, इट्स अ गिफ्ट। तो उनका 1.3 मिलियन यूएस डॉलर्स के अंदर का अगर वो प्रॉपर्टी है तो वो गिफ्ट दे सकती है, लाइफ टाइम उनका एक राहत है। तो कुछ एक स्लैब है 1.3 1.5 ऐसे करके, तो उसके अंदर अगर आता है तो उनको गिफ्ट टैक्स नहीं पेमेंट करना, आपके लिए कुछ नहीं है, उनको गिफ्ट टैक्स पेमेंट नहीं करना है। वो चीज वो अलग फाइलिंग्स होते हैं सर, वो इनकम टैक्स की फाइलिंग्स अलग, गिफ्ट टैक्स अलग है, वो अलग ही स्टैट्यूट है उनका। तो ये देयर आर फ्यू W2s। अब जैसे सर बोले W2 फॉर्म 16 आप दिखाइए, तो ये होता है सर W2। ये ऊपर में देखिए फेडरल की विथहोल्डिंग्स है, ये फेडरल टैक्सेस की है, ये स्टेट टैक्सेस की है, ये मेडिकेयर की है, ये तीनों अलग अलग है, सेम ही आदमी कमा रहा है, इसके ऊपर अलग अलग विथहोल्डिंग्स है। ये आपका यहाँ पर कंपनी का नाम रहता है, यहाँ पर एम्प्लॉयर का, यहाँ पर आपका SSN रहता है, कंट्रोल नंबर रहता है, यहाँ पर एड्रेस रहता है। ये एड्रेस आपकी वाइफ का है टेक्सास में, आपका यहाँ पर या मैरिड फाइलिंग जॉइंटली कर रही हो स्टेट रिटर्न में, तो हो सकता है फंस जाए, क्योंकि 6 मंथ से बाद 6 मंथ से ज्यादा आपने अलग रहा है पूरे साल में, तो MFS हो सकता है आपको फाइल करना पड़े। ये 1099 है जो आपने बात कर रहे थे ना, फॉर्म 16, मतलब क्या है, पूरे साल में बैंक दिया है कि फिडेलिटी, ये जो आपके जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाले जो होते हैं वो सब दिए, ऑर्डिनरी डिविडेंड 664 है, इंटरेस्ट इनकम ये सब 31 जनवरी के अंदर तक ये फिडेलिटी को IRS में रिपोर्ट करना है, और IRS के पास में इंफॉर्मेशन है कि इतना तो आपने कमाया ही है, ये आपको रिपोर्ट करना है आपके 1040 में जो अभी अपने दिखाए थे। ये देखिए, ये आपके नीचे में कैप गेन्स है, ये एनवीडिया का स्टॉक है, अगला का क्वांटिटी इतना था, सेल वैल्यू इतना था, वो कॉस्ट था उसका, उतना उसका कैपिटल गेन आया, ये रिपोर्ट करना है। ये सर यूएस नॉन रेजिडेंट को कैपिटल गेन्स लगता है क्या? सॉरी, यूएस नॉन रेजिडेंट्स को यूएस की कैपिटल गेन्स पे कोई टैक्स? सर अगर वो यूएस नॉन रेसिडेंट है लेकिन अगर वो ग्रीन कार्ड होल्डर है, नहीं लगेगा उसको। ये कम बैक टू इंडिया, उसको स्टॉक ऑप्शंस है वहां पे, वो बेच रहा है। वहां पर देखिए वो इनकम वहां पर अक्रू कर रहा है तो हिसाब से वहां पर लगना चाहिए, बट वहां पर वो नॉन रेसिडेंट है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट भी नहीं ले पाएंगे 14,600 वाला। ऑन कैपिटल गेन्स पे उनका मेरे हिसाब से लगना चाहिए सर, उसमें मेरे हिसाब से लगना चाहिए, बट कोई स्टॉक्स और रिलेटेड है तो हो सकता है नहीं लगे नॉन रेसिडेंट के लिए। रिटायरमेंट प्लान का जो पैसा आएगा वो रिटायरमेंट प्लान का तो आपका लगेगा, लेकिन सोशल सिक्योरिटी जो मैं वही बोल रहा हूं, यहां पर आपका देखिए ये आंसर यहां पर है आपका, ये देखिए ये सोशल सिक्योरिटी, ये बहुत अच्छा राहत दिया हुआ है DTAA में कि वहां से रिटायर होकर के इंडिया आ गए है तो वहां से रेगुलर मिल रहा है, पेंशन है आपका एक्सेट्रा, जो रिटायरमेंट प्लान का जो भी है। हाँ,
तो यहाँ पर अगर आप यूएस में उसको रखते हो, इंडिया में अगर आप डायरेक्ट नहीं लेते हो, इंडिया में आर्टिकल 21 जो टैक्स ट्रीटी है आर्टिकल 21 में इसका छूट है, इंडिया में टैक्स नहीं होगा, एग्जेम्पशन ही है आपका। कोई भी कुछ है ना कि आप अक्रूड वैल्यू के ऊपर टैक्स देना चाहे तो एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा इंडिया में। देखना पड़ेगा सर वो वाला जो आप जो बोल रहे बीस साल पहले से आया था। ओके, यू हैव एन ऑप्शन कि आप चूज करो कि आपको मार्केट वैल्यू पे टैक्स देना है कि आपको मैच्योरिटी पे टैक्स देना है। ओके, देखना पड़ेगा सर आप कौन सा पर्टिकुलर क्वेरी का आप जो बोल रहे हो। सो मोर और लेस यहाँ पर मैं कवर कर लिया हूँ। ये ओपीटी का भी है जो F1 वीजास पे है, जो नॉन रेसिडेंट्स है 5 इयर्स के लिए, लेकिन वहां पर इंटर्नशिप पे कमाते हैं तो उनको भी 1040 NR फाइल करना पड़ता है और एग्जेम्पशन लेना पड़ता है उनको। ये फाइल करके 8843 की एसपीटी में मैं एग्जेम्पशन हूं बिकॉज मेरा 5 इयर्स तक का एड हॉक नॉन रेसिडेंट हूं, तो मेरा टैक्स रेसिडेंट नहीं होगा। सो मोर और लेस ये है द टैक्स गाइड, ये पूरा जो है ये आप लोग के पास में आएगा। कोई भी क्वेश्चन रहेगा प्लीज यू कैन आस्क मी नाउ ऑल्सो। मैम हैज बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई एम फीलिंग बैड ऑल्सो, तो आप वी कैन टेक द क्वेश्चंस ऑफ द फ्लोर ऑल्सो। थैंक यू फॉर योर टाइम। सर